Okay, so the recording is now on now. I'll start presenting my screen. So this is a 3 minute video. ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम इसको देखा था, तो अभी हम दोबारा से इसको जरूरत. Let me know when you can see my screen. हाँ जी, नजर आ रही है स्क्रीन या नहीं? यस सर. जी सर. This is the business model canvas. It's just what Beth and Carl will need to craft a powerful business model, and it can do the same for you. Let's dive in and see how it works. There are 9 essential building blocks that make up any business model. When you get all 9 blocks working together, you'll have answered the fundamental questions any business model must solve. We'll start here with customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. Channels describe through which touch points are interacting with customers and delivering value. The customer relationships outline the types of relationships you're establishing with your customers and how you're acquiring and retaining them. Pricing mechanisms through which your business model captures value are documented under revenue streams. The key resources show which assets are indispensable in your business model, so you can describe the infrastructure you need to create, deliver, and capture value. The key activities show which things you need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor will you perform all key activities. And once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. Any business model can be mapped this way: 9 building blocks working to reinforce and strengthen each other. But before you make a model for yourself, it helps to see what a breakthrough business model looks like in action, like this one. Low-cost airlines revolutionized air travel thanks to their disruptive business model. Let's first look at their value proposition. A low-cost airline offers ultra-cheap flights to their main customer segment, budget travelers, by adopting a no-frills policy. And this leads to additional revenue streams, because customers pay for their ticket and additional fees on items like food and drink, priority boarding, and luggage. The airlines save even more money through their choice of channels, selling only through call centers and the internet, making for efficient, if not always convenient, customer relationships that are automated and often impersonal. Okay, that covers the right side of the canvas, the part everyone can see. The left side of the canvas is what's going on backstage. Like their choice of key resources, they reduce maintenance and training costs by using a single aircraft model for the whole fleet. And they only fly to cheap airports where it's cost efficient to land, or where they even get paid to touch down. Planes that do land have quick turnarounds, so they get back in the air earning money as quickly as possible. And they form key partnerships with others in the travel industry, like car rental, hotel, and insurance companies. Finally, under cost structures, all maintenance, training, airport, and call center costs are trimmed to their lowest levels. All of these pieces working together make their fares almost impossible for traditional airlines to compete with. There's nothing superior about these airlines except their business models. They're reaching an entirely new segment of travelers out of reach for traditional airlines. Cutting out costs is pretty exciting, right? But wait, just because it's successful for discount airlines doesn't mean it will work for your idea. Luckily, the business model canvas allows you to iterate many models and test them quickly. Let's get started with your own business idea. For each value are documented which things you need in blocks working to reinforce and अच्छा जी, इसके बाद हम लोग कुछ और वीडियोस भी देखेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कशन. अच्छा नासिर साहब जी, हमें बताएं आपको इस बिजनेस कैनवस मॉडल से क्या समझ में आया? सर, ये बिजनेस मॉडल से हमें ये समझ आया कि जो हम कस्टमर सेगमेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कौन कौन हम देख रहे हैं, कौन सा हमारा कस्टमर है, फिर इसके लिए हम वैल्यू प्रोपोजिशन हम करते हैं. बिल्कुल. और ठीक है, और फिर इसके अलावा हम एक प्रॉपर चैनल्स बनाते हैं कि किस तरह हम इसको प्रोवाइड करेंगे वे कस्टमर को वैल्यू. और इसके बाद हम रिलेशनशिप को देखेंगे, हमारे कस्टमर के साथ कैसा रिलेशनशिप है.
ठीक है, सही है। ठीक है और सर। मतलब टोटल 9 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक हो गया, सही है। इन 9 यस सर, हाँ कंपोनेंट्स। सर। अच्छा, जो लोग क्लास के अंदर नए आए उनको मैं सिर्फ ये बता दूं, अगर वो शॉर्टेज में नहीं आए हुए, ठीक है, कि आप लोगों को कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट चूज करना होगा, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट में आप काम कर सकते हो, प्रोजेक्ट आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो और वो प्रोजेक्ट आप ग्रुप में भी कर सकते हो। तो वो बाकी लोगों में प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आप उनके साथ नहीं फिट हो सकते, ठीक है, मैक्सिमम ग्रुप कैन हैव 2 मेंबर्स, अगर आप उनके साथ नहीं फिट हो सकते तो फिर आप अलग से जो है ना अपना जो है तो प्रोजेक्ट इनमें से कोई एक ले लेंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा, ओके, लेट मी शो यू एन अदर वीडियो, ठीक है, एक तो और सर वीडियो ये जो है। प्रोजेक्ट तो पूछ रहे थे सर कि प्रोजेक्ट आप देंगे या हम अपने आप से सेलेक्ट करेंगे सर? प्रोजेक्ट जी मैं ही दूंगा और ज्यादातर लोगों को मिले भी हुए हैं, तो आपको इंशाल्लाह जो है ना ये जब एक्टिविटी थोड़ी सी हम कर रहे होंगे उसके दौरान हम आपके साथ प्रोजेक्ट पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। Let me put this video on. So one of the interesting things about thinking about a startup is how is your company going to be organized? And well, अच्छा, कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? ये जो अभी जो YouTube की जो वीडियो है या नहीं? सर ब्लिंक कर रही है सर। सर ब्लिंक कर रही है। अच्छा, एक मिनट, आई शेयर इट अगेन। Let me know when you can see it. नजर आई? अभी शो हो रहा है। यस सर। what we now know is the most efficient way to think about all the pieces, just all the parts, is by a business model. And so the next question is, okay, Steve, you just told me to think about a business model, but what is a business model? What are all the pieces? Well, let's take a look. And a business model is how a company creates value for itself while delivering products or services for its customers. Now, if you think about it, in the old days, we think about how to organize a company around functional organizations. We think, no, a company is about its sales department or its engineering department, and you would draw an org chart. But now we're going to draw a very different diagram. We're going to draw a diagram of how to think about all the pieces of a business. And so let's take a look at these 9 boxes. 9 boxes to describe any company from the world's largest to a 2-person startup starting in your parents' garage. Let's take a look at the first piece called the value proposition. The value proposition answers the question, what are you building and for who? The value proposition says, hey, it's not about your idea or product, it's about solving a problem or a need for a customer. That is, what pain are you solving? What gain are you creating? And more importantly, who are your customers? Now, value proposition is a fancy word for what product or service are you building. This is where you normally would list all your features and here's all the speeds and feeds and benefits and whatever, but you're really going to be asking a different question than might have been used to. It's not all about your technology. Your technology is just part of the value proposition. Customers really don't care about your technology. But customers are trying to solve a problem or fulfill a need. By the way, we'll be talking about this through multiple lectures. The difference between a problem and a need is a problem is I have an accounting problem or I want to use a word processor. And those types of products solve problems. But there are other things that human beings do, like I want to be entertained or I want to have a date. Those are some basic hardwired social needs. Or I want to communicate with my friends, like Facebook or Twitter. Those are needs. Needs are different than problems. And by the way, if you could find products that solve needs, your total available market, as you'll see later, is huge compared to I solve specific problems. So the next thing is, who are my customers? Who are they and why would they buy? And as you'll hear a number of times, your customers do not exist to buy, you exist for them. And what you're going to do by getting out of the building is figuring out all their geographic, social characteristics, demographics, such that you actually could draw and put up a picture on your wall
of who the archetype is or who the persona is of your customer. And it turns out that in most startups, you might have more than one or two or three types of customer archetypes and personas, but you need to understand them in detail. And there is no possible way you could have anything but a hypothesis on day one of who they are. The next is channels. How does your product over here get to your customers over here? And we use distribution channels to do that. Now, what's really interesting is pre-1990s, the only channels to get to a customer was a physical channel. That is, you went to a store, you had salespeople, physical distribution. But since the mid-1990s, in the last couple of decades, we now have virtual channels, the web, mobile, cloud. And so distribution channels, the first question you want to ask is, how will I be selling and how will I be distributing my products? Are they through physical channels or are they web mobile? Or given today, almost every physical channel also has a web presence. What is the relationship of how your product gets from your company to the customers? Customer relationships is kind of the fourth piece. And customer relationships has a really interesting interaction with these other three pieces. It basically says, how do I get customers? How do I keep them? And how do I grow them? And just like thinking about distribution channels, these are very different for web mobile than they are for physical channels. But visually, they kind of look like this double-sided funnel. So let's just take a look at quickly a web example. In getting customers, you're going to be worrying about how do I acquire them? That is, how do I get them even to my website? How do I activate them? That is, how do I make them do something? And then later on, we'll see after I got them, how do I keep them around? That is, how do I not lose them through attrition and churn? And then what can I do once I have customers to make them spend more money or use my product even more? And so one of the things we'll be thinking about is, how do I get, keep, and grow customers? And just like every other step, you might have hypotheses on day one, but you're only going to figure this out when you're out of the building. The next thing is revenue streams. How do you actually make money from your product and service being sold to customer segments? You know, revenue streams basically ask the question, what value is the customer paying for? And it actually has you think about what's the strategy of how I'm going to capture that value. Is it I'm going to just have a direct sale and it's a transaction based on price? Is it a freemium model where I'm going to give away the product for free and hope that some portion convert later? Is it a license or subscription? The pricing tactics. That is, what is the dollar or pound? एक्सक्यूज मी सर, वीडियो हैंग हो गई। सर वीडियो रुक गई है। सर वीडियो हैंग हो गई। लगता है सर का नेट डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा जी, where did I lose you guys? सर revenues. All right. Can you guys see the screen now? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Being
see. What value is the customer paying for? And it actually has you think about what's the strategy of how I'm going to capture that value. Is it I'm going to just have a direct sale and it's a transaction based on price? Is it a freemium model where I'm going to give away the product for free and hope that some portion convert later? Is it a license or subscription model? That revenue model is different than the pricing tactics. That is, what is the सर वीडियो फिर से हैंग हो गई है। यस सर। आई थिंक सर नेट खराब है। Actually, I'm really sorry. This does not generally happen with my internet, but it's going rogue today. तो इसको दोबारा से जो तो मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन I'm really sorry. Let me figure this out कि ये क्यों जो है तो आज हो रहा है, बल्कि अभी होना शुरू है। सुबह एक क्लास में ली थी, उसमें तो कोई इशू नहीं था। Is there intellectual property you need? Is there patents you need to acquire or protect? Do you need to acquire customer lists? Or is it just that you need to get great people, great software programmers in a specific area, or great hardware designers, or great manufacturing people? And then finally, again, the interaction between intellectual and human capital is that's another key resource. What specifically do you need to do to keep these people, and who are they? The next piece is, who are your key partners and suppliers? And partnerships are kind of interesting, is we need to ask ourselves, before what's the deal, is what exactly are we acquiring from partners? And also, what activities are they going to perform and when? And this is where startups sometimes make a mistake of thinking, well, large companies do partnerships, I guess I need those too on day one. Turns out the types of partnerships you need in year one are certainly not the ones you're going to need in year 3 or 5 or 10. And the types of partnerships could be strategic alliances, joint ventures, just regular suppliers and buyers. And so you need to be thinking through who they are and actually getting out of the building and testing them.
Next are key activities. What's the most important things you need to do for the business to make the business model work? Are you in the production business? Are you making something? Or are you in the problem-solving business, like you're doing consulting or engineering? Or are you managing supply chains? What are the key activities you need to become expert at? And then finally, all this adds up on the left-hand side over here to costs. What are the costs and expenses to operate the business model? One of the interesting things about cost is it's not just the obvious ones like people or buildings or materials. What you're really going to be asking are what are the entire costs to operate our business model? And so you want to think about what are the most important costs you need to worry about? What are the most expensive resources you're going to need to pay for? And what key activities are the most expensive? And then you want to ask the typical accounting things. What are fixed costs? What are variable costs? Are there economies of scale? And you want to start getting a good handle on what it is that will end up costing you money to run your business. अच्छा जी, Okay, so there is another video which we can go through, ठीक है? उसमें जो है तो Uber का business model जो है इन्होंने explain किया हुआ है. But before that, what I would like you to do is आप सबके साथ business canvas model जो है वो shared है, right? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. अच्छा, मैं चाहता ये हूँ कि आप अभी हम लोग जब इस बिजनेस कैनवस मॉडल जब हम लोग बनाने लगेंगे, ठीक है, तो हम लोग इसके मुख्तलिफ वर्जन्स बनाएंगे. तो आप इसी तरह बिजनेस कैनवस मॉडल वर्जन 1 वर्जन 2 इसी तरह करके हम लोग इसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है. अच्छा, व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई वांट यू टू टेक से 10 to 15 minutes. I hope they are enough क्योंकि हम लोग ये पिछली 3 क्लासों से करते चले आ रहे हैं, ठीक हो गया. तो 10 to 15 minutes and I want you to fill and discuss that business model with your partners. ठीक है, आप इन दूसरे क्लास वालों के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपका क्या ख्याल है, और बंदों के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. तो 10 से 15 मिनट में चाहता हूँ आप लें और उसके बाद आप लोग जो है उस बिजनेस मॉडल को यहाँ पे प्रेजेंट करेगा हर एक बंदा अपने बिजनेस मॉडल को, ठीक हो गया. अच्छा, फिर उस प्रेजेंटेशन के बाद क्या होगा कि हम लोग जो है ऊबर वाली जो एक वीडियो है वो हम देखेंगे अगेन फ्रॉम बिजनेस मॉडल, उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत कमेंट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द स्लाइड्स. और स्लाइड्स के अंदर हम लोग इस बिजनेस मॉडल के अंदर जो दो चीजें हैं, जो एक है वैल्यू प्रोपोजिशन और एक है कस्टमर सेगमेंट्स, इन दो चीजों को हम थोड़ा डिटेल में जो है तो आज इंशाल्लाह जो है तो देखेंगे, ठीक हो गया जी. एनी क्वेश्चंस? पूरा कैनवस मॉडल फिल करें सर. कैनवस मॉडल सर हम किसके ऊपर बनाएंगे? जी, आपको जो प्रोजेक्ट जो लास्ट टाइम किस किस का जी डिसाइडेड था? शरियार साहब आपका क्या प्रोजेक्ट था जी लास्ट टाइम? सर मेरा और नासिर का एक इन प्रोसेस मेजरमेंट है हमारा मेरा और क्या प्रोजेक्ट था जी, फिर बताएं. इन प्रोसेस मेजरमेंट. बिल्कुल, तो आप दोनों को इन प्रोसेस मेजरमेंट के ऊपर जो है बिजनेस कैनवस मॉडल जो तो बनाना होगा, ठीक है. काशिफ जी आपका क्या प्रोजेक्ट? सर हमारा स्मार्ट वैक्सीन बॉक्स. हेलो सर. सर मैं भी डिस्कनेक्ट. नेटवर्क इश्यूज भाई. हाँ वो मेरा वहां का इंटरनेट तो चला गया, ये घर वाला जो है वो टाइम फ्रॉम हियर फ्रॉम माय सेल फोन, ठीक है. तो काशिफ के साथ गालिबन तैमूर है, ठीक है. यस सर. यस सर. अच्छा जी, ठीक है, सही हो गया. अच्छा, ये तो दो ग्रुप हो गए, सही है. अच्छा, तीसरा ग्रुप किसने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है? सर ये मेरे सर हाइड्रो टरबाइन का सर बिलाल खटक के साथ. अच्छा, बिलाल खट्टा के साथ आपका जो है तो हाइड्रो टरबाइन का था, ठीक हो गया जी, सही है. अच्छा सर मेरे साथ सर ग्रुप मेट नहीं है सर, तो किसके साथ करूं सर?
अच्छा फिर आप जो है हमारे पास health टॉपिक भी में नहीं है, electric तो कर लो। टॉपिक मैं अपने आप से सेलेक्ट करूंगा या नहीं सर? नहीं आप जी, टॉपिक जी आपको हम देंगे, और ग्रुप मेट अगर आपका नहीं है तो यू हैव टू डू इट अलोन। सर मैं ठीक है, अकेला हूँ सर, इलेक्ट्रिक कार है मेरा सर। आपकी इलेक्ट्रिक कार है सलमान खान साहब जी, तो आप इनके साथ जी जा सकते हैं फिर इलेक्ट्रिक कार में। ये सलमान के साथ सर? जी जी, और या अगर ठीक है आपको सर। कोई और प्रोजेक्ट चाहिए तो आप कोई और भी कर सकते हैं, वट एवर नहीं तो सूट्स यू। प्रोजेक्ट, तो टॉपिक्स किधर है सर? वो तो अगर आप शेयर कर लें हमारे साथ, या नहीं बिल्कुल आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, इसके अलावा जी हमारा एक ही टॉपिक जो है वो रहता है, वो एक हमने एक कूलिंग हेलमेट जो है ना एक बनाई हुई है, तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, तो यू कैन टेक दैट एज वेल। ठीक है सर। सर ये दोनों मैं नोट कर लेता हूँ सर, अगर हो तो मैं सलमान के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा इलेक्ट्रिक कार में। ठीक हो गया, ठीक हो जी गया, ठीक जी बोलिए। हो गया। Okay, guys, so you guys have 15 minutes. You can talk to each other as well. You can talk to your group mates तो as well. Okay, come up with your first plan. पावर पॉइंट के अंदर आप इसको अगर बना लें या वर्ड के अंदर बना लें, इसको वर्जन 1 का आप नाम दे दें, ठीक है, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये आपका अपडेट होता रहेगा। ऑलराइट, ठीक है सर। ओके, सी यू गाइस इन 15 मिनट्स। आपके जी बहुत शोर आ रही है यूसुफ साहब। ठीक है सर। आई थिंक यू नीड टू बाय अ न्यू माइक। बड़े लोग के हेडफोन लगाए होंगे ना, वो इस टाइम पे दुआएं दे रहे होंगे। Hello. Hello. जी यूसुफ साहब जी। हेलो। जी सर, आप आवाज़ ठीक है मेरी? बिल्कुल ठीक है। आपको मुझसे जी कोई सवाल पूछना है या इनके साथ जी जी डिस्कशन सर, करना मैं कह रहा था वो हेलमेट कूलर वाला प्रोजेक्ट आपने मुझे साइन किया था, है? अच्छा, तो अच्छा ठीक है, वो सॉरी। अगर कोई आता है तो आपके साथ ग्रुप में कौन है जी? ठीक। आप अकेले ही हैं? सर मैं ग्रुप में अकेले अकेले ही था सर, अकेले ही था। ठीक है, सही है। सो इफ यू वांट टू इंक्लूड मसअब, दैट इज फाइन। तो मसअब आप इन दोनों में से एक में जो आपको सिलेक्ट करे, थोड़ा सा इस तरह का मसला है, ठीक है, ये दोनों में ठीक से है एक। सर। सर पर ये है, क्योंकि मैं अभी ग्रुप में वो सलमान का नंबर ढूंढ रहा था, उसका नंबर नहीं मिल रहा सर, तो मुस्तफ़ा का नंबर है सर, तो मैं इनके साथ हो जाता हूँ सर। हेलो, आवाज़ आ रही है? काइंडली यार द ग्रुप एडमिन शुड इमाम ऐड की तो रफर नंबर इमाम ग्रुप ऐड।
कर रहे थे, मॉडलिंग क्लास कुछ पूछते थे।
अच्छा जी, who is ready to present? सर ये अगर मैंने तो पेज पे एक रफ वर्क सा बनाए हुए है सर, प्रॉपर नहीं बनाया। जी जी बताएं, लेकिन आप वो उसको MS वर्ड की आप गूगल क्लासरूम में भी गालिबन आप नहीं है, तो वहाँ पे MS वर्ड के और नो सर, पावर पॉइंट शेड है, तो हाँ वहाँ गूगल से क्लास। आप और वहाँ पे आप उसको आराम से टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी एक तस्वीर लेके उसको भी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, व्हाटएवर, इट डजंट रियली मैटर। सर चलिए फिर ये मुस्तफ़ा वो कर लेगा सर। मैंने तो वैसे फर्स्ट लेक्चर है सर, तो मैंने रफ सा बनाई हुई, वैसे ना मैं थोड़ा गलत हो जाऊं इसलिए। नहीं ठीक है, गलत हो जाए, फर्स्ट ड्राफ्ट एनीवे, सबका पहला ड्राफ्ट है, कोई मसला नहीं। जी मुस्तफ़ा, वुड यू लाइक टू स्टार्ट? सर अभी बना रहा हूँ, अभी रहता है, काम है इसमें सर। चलिए ठीक है, सो यू गाइस नीड लेट्स से 5-10 मिनट्स मोर। टाइम लगेगा सर, इसमें चीजें हैं जो ऐड करने वाली हैं सर। अच्छा, से 20 मिनट्स मोर। जी सर, कह सकते हैं सर। Hello. Kashif, are you ready to present or do you need some time? Sir, we can present if there is not someone else. Yes, sir, can I share my screen? Sure, ji. Share the screen, please. Is my screen visible to you, sir? Is my screen visible? Yes, बिल्कुल विजिबल है, लेकिन आपको रिप्लाई Our presentation, our project is Smart Vaccine Box. A bit short of brief introduction, capable to maintain temperature of 2 to 8 degrees with compress of the sensors. So I will rush through the slides, and in the end I have made a business canvas model. So when data will be sent to cloud-based database, or environment of the South Asia is not suitable to carry vaccines, so we will use certain dry ice to maintain vaccine temperature. So in previous class, we have studied about the value proposition and the question answers that were given by the link shared during the class. So what is the value proposition about our vaccine box? What value do we deliver to the customer? We plan to deliver cost benefit and economical design of smart vaccine box that can be easily carried. So which one of our customer problems are we helping to solve? The main problem of our customers are temperature of the vaccines and location tracing. We plan to introduce GPS and temperature sensor with embedded QR code sensor in order to display temperature and location on the mobile. So another question, which job are we helping the customer get done? As COVID-19 cases are increasing faster around the world, so we plan to launch a smart vaccine container with embedded sensor. We will be in contact with our customers for availability of the vaccine boxes. The next question, which customer needs are we satisfying? Our aim is to provide vaccine box at budgeted price for the noble cause, ensure efficacy of the vaccines, ensure the temperature safety,
of the vaccine, installation of the vaccine counters that counts the number of used vaccines. And the next question, what bundles of product and services are we offering to each customer segment? As there are different types of vaccine, but according to the current pandemic, we have different types of COVID vaccine that are stored at different temperatures. Our plan is to meet the requirement of these vaccines in order to reach the customer. From whom are we creating value? We are creating value for our customer and their required needs. As with the advancement in technology, we design such vaccine boxes that keep the temperature according to the need of the vaccine, installation of the GPS and sensor, and vaccine counters that display the number of used vaccine. Who are our most important customer client for users? As we design the smart vaccine boxes, so our most important customer are healthcare centers. Our list of customer and users include public healthcare sector, private hospitals, pharmaceutical companies, health laboratories. So basically, this is the business canvas model version 1.0. So our key partners, our key partner will be WHO, and the key activities that we will perform in order to establish a smart vaccine box, or it will be consist of the sensor, temperature sensor, infrared counters, GPS. Then, as previously discussed, that value proposition will be consist of the cost, benefit, and economical design, lightweight and easily carryable vaccine box, temperature safety of the vaccine, and the counter sensor. These are the most important parts of the vaccine. The most important is of temperature. And the customer relation, inform and educate customer about the product, to analyze market dynamics, and then customer segment will be government healthcare centers, private healthcare centers, pharmaceutical centers, and laboratories. So then the channels, how to advertise or how to have the public awareness and business cards, TV advertisements, social media, public awareness drive, etc. Then key resources, like what will be our key resources, like small warehouses, or like cloud centers, like a database center, in order to assess the location, the temperature, how much vaccines are administered, how much container boxes are made, or how much are out in the market. So the whole data gather will be done in cloud-based centers. Our cost structure depends upon the cost of optimization of the vaccine boxes. So we have to make an economical and design boxes in order to facilitate the society or for the noble cause. Revenue stream, our main revenue stream is as paper product as decided with the customer. So we will decide our revenue stream according to the customer needs requirements. Yes, sir. It's and thank you, sir. Okay. So अभी जो मैं बातें करूंगा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वेल डन फॉर द फर्स्ट ड्राफ्ट, वेरी वेल डन। ठीक है, अच्छा। दूसरी बात ये बाकी सबके लिए कि जो क्लास के अंदर ये तरह से रूटीन चलती है, जब कोई बंदा अपनी चीजें प्रेजेंट करता रहता है तो मैं उसको सजेशन देता रहता हूँ कि जो काम है माय साइड से इम्प्रूव होता रहता है। ठीक है, अब वो मतलब वो सजेशन तो जनरल होते हैं और सबके लिए होते हैं, लेकिन उसको थोड़े स्पेसिफिक सजेशन देते जाते हैं। पॉइंट जल्दी आ जाते हैं, उनके काम जो क्रिटिकल होते हैं, उनके ग्रेड्स आखिर में बेहतर होते हैं। तो कोशिश आप ये किया करें हर एक बंदे के यहाँ पे प्रेजेंट किया करें चीज़। ठीक है, वैसे ही अच्छा। सॉरी जी, सर आपकी आवाज स्लो आ रही है, लेकिन आ रही है। अच्छा, आवाज मेरी स्लो आ रही है। यस सर। अब ठीक हो गई सर।
आज यहाँ पे गालिबन जो है इंटरनेट आवाज नहीं आ रही सर। सर मसला डिस्कनेक्ट हो गया। सादिक रहीम से होंगे अल्लाह से। I think it will be better now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो इस तरह से है कि जो बंदा प्रेजेंट करता रहता है उसका काम जो ज़्यादा बेहतर होता रहता है, ठीक हो गया। और वो आप तो कोशिश ये करें आप सब लोग कि एक एक बंदा जो है उसको प्रेजेंट जो है ज़रूर मतलब किया करें, जो भी ग्रुप है, ठीक है, ताकि वो चीज़ बेहतर हो जाए। अच्छा जी, अब आते हैं इस की स्पेसिफिक्स के ऊपर। वेल डन फॉर द फर्स्ट जॉब, ठीक है। स्पेसिफिक्स पे आते हैं। अगर पीछे जाएँ बच्चे, स्लाइड्स में पीछे जाएँ ज़रा। बिल्कुल, वो शुरू से चले जाएँ, शुरू में जहाँ पे ठीक है। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन जी ठीक हो गया, आप आगे चलें। हो गया, ठीक है जी, आगे चलें, ये भी सही है। अच्छा, व्हाट वैल्यू आर यू क्रिएटिंग एंड व्हिच वन ऑफ आवर कस्टमर प्रॉब्लम्स आर वी हेल्पिंग टू सॉल्व। देखो, अब यहाँ पे आपने जो वैल्यू क्रिएट करी है, आप उसका कॉस्ट बेनिफिट लिख रहे हो, ठीक है, उसका डिज़ाइन लिख रहे हो, ये दोनों चीज़ें हैं, ईज़िली आप कैरी करते हो, ठीक हो गया। Yes, sir. ये आपकी वैल्यू है। और कस्टमर का मसला आप कौन सा हल कर रहे हो? कस्टमर का मसला आप हल कर रहे हो टेम्परेचर का, ठीक हो Yes, गया, sir. Yes, लोकेशन sir. का, जीपीएस सेंसर्स का, क्यूआर कोड का, ठीक है। देखो, जो आप वैल्यू क्रिएट करते हो ना, वो आप कस्टमर का मसला हल करके क्रिएट करते हो ना, इसी तरह से। Yes, sir. Yes, sir. अब आपकी वैल्यू जो है वो किसी और डायरेक्शन में जा रही है, ठीक हो गया। आपकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल एक और डायरेक्शन में जा रही है, जो आप क्रिएट कर रहे हो, इकोनॉमिकल डिजाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो कस्टमर का मसला आप हल कर रहे हो कुछ और है। अभी देखो, उस बंदे ने भी क्या कहा था, जब आप कस्टमर कोई मसला होता है, उस मसले को आप हल करते हो और वही वैल्यू होती है, Okay, sir. ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि आप जो कह रहे हो कि इकोनॉमिकल डिजाइन, तो अब नीचे हो सकता है कस्टमर का मसला ये भी हो, इकोनॉमिकल डिजाइन है या नहीं है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता, हम कस्टमर से पूछेंगे ना, ठीक है। लेकिन अभी तो हम एक assumption की बेस के ऊपर हम लोग इसको फिल कर रहे हैं। तो अगर ये कस्टमर का मसला है कि इकोनॉमिकल डिजाइन है, तो फिर ये कस्टमर को वैल्यू जा रही है कि इकोनॉमिकल डिजाइन है। लेकिन अगर ये कस्टमर का मसला ही नहीं है कि यार इकोनॉमिकल डिजाइन है या नहीं है, ठीक है, तो फिर तो ये कस्टमर का मसला ही नहीं हुआ ना, Okay, sir. ठीक है। तो जो कस्टमर का मसला ये हुआ कि लोकेशन ट्रैकिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर लोकेशन ट्रेसिंग कस्टमर का मसला है, तो फिर आप जो वैल्यू डिलीवर कर रहे हो वो भी यही है कि लोकेशन ट्रेसिंग हम लोग कर रहे हैं। Okay, sir. जो मसला होता है उसी का सोल्यूशन जो है ना, वो वैल्यू होती है। ये दोनों Yes. अलग अलग चीजें जो है तो नहीं होती। Yes, sir. सर बेसिकली जो वैल्यू जो डिलीवर हम कर रहे हैं उसमें जो पॉइंट्स हम लिखेंगे वही हम फिर कस्टमर प्रॉब्लम उसमें ये सॉल्व करेंगे। एग्जैक्टली देखिए, आप कस्टमर से इवेंचुअली तो ये होगा कि आप कस्टमर से खुद पूछेंगे, हाँ भी तुम्हारा ये मसला है कि नहीं है, ओके सर। ठीक है। Yes, तो sir. फिर अगर वो कस्टमर आपको कहेगा हाँ यार मेरा ये मसला है, तो फिर उस मसले को हल करने के लिए आप कोई डिजाइन करोगे या आप कोई भी एक एक्टिविटी जो कुछ भी आपके पास है, कोई टेक्नोलॉजी है, वट एवर द थिंग इज, ठीक है। तो फिर वो जो चीज होगी ना, वो फिर आपको उस कस्टमर को वो वैल्यू दे रही होगी, और उस चीज के लिए वो कस्टमर जो है ना उस चीज के पैसे देगा, वरना वो क्यों आपको उस चीज के पैसे देगा। यस सर। अब कस्टमर देखो, आपने मुझे कहा कि आपके कस्टमर का मसला है कि बॉक्स की ट्रेसिंग करनी है, टेम्परेचर को देखना है, सही है। और कस्टमर जो पैसे दे रहा है आपको इकोनॉमिकल डिजाइन के दे रहा है, तो भाई मेरा मसला जो है वो बॉक्स की ट्रेसिंग है, तो मैं तुम्हें इकोनॉमिकल डिजाइन के पैसे क्यों दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बॉक्स ट्रेसिंग के पैसे देने चाहिए। यस सर। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें ना इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ, तो इसको इसी तरह से जो है ना थोड़ा सा इसको लेके इसी तरह से चलना। अच्छा, इसी तरह देखें, आप अब नेक्स्ट वर्जन आप बनाते रहेंगे ना, तो चीजें जो है आपकी इंशाल्लाह जो है वो बेहतर होती जाएंगी। आगे चलें जी जरा। अच्छा, अभी देखें विच जॉब आर वी हेल्पिंग कस्टमर्स डन, ठीक है, इंक्रीजिंग फास्टर। अच्छा, आपकी जो जॉब है ना, जो आप कस्टमर जो हल कर रहे हैं, वो वैक्सीन की एक चीज़ आती है, उसे कहते हैं लास्ट माइल। ये टेक्निकल एक टर्म है कि आपके हेल्थ सेंटर तक पहुंच गई। अब हेल्थ सेंटर से हैदराबाद में हेल्थ सेंटर पे पहुंच गई। अब हैदराबाद फेज 2 में, फेज 5 में हेल्थ सेंटर है, और उन्होंने फेज 2 में वैक्सीन पिलानी है अलग अलग घरों में जाके, फॉर एग्जाम्पल। ठीक हो गया। तो आप का जो मसला है वो लास्ट माइल है, तो आप लास्ट माइल के इश्यूज को जो है ना आप हल कर रहे हो। ठीक हो गया। तो Yes, अब sir. आप देखें, आप
देखिए आपने स्मार्ट वैक्सीन कंटेनर और सेंसर और चीज़ें अभी जैसे वो हमने लास्ट वीडियो भी देखी, उस वीडियो में उस बंदे ने क्या कहा था कि आप तो टेक्नोलॉजी आपने बना ली, कस्टमर को आपकी टेक्नोलॉजी के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसका मसला ये है कि तुम उसका मसला कौन सा हल कर रहे हो, ठीक है? उसको सिर्फ अपने मसलों के साथ है। आपने जो आप इसकी देखें, अब आपने वहाँ पे लिखा हुआ है पीछे कोई खास तरह का सेंसर आपने लिखा हुआ है, हो सकता है आप वो यूज़ ना करें, आप थर्मोकपल यूज़ कर लें, हो सकता है आप थर्मोकपल यूज़ ना करें, आप कोई और सेंसर यूज़ कर लें। कस्टमर को उसके साथ क्या फ़र्क पड़ता है? कस्टमर का मसला ये है कि यार मेरी चीज़ ठीक है या मेरा काम हो रहा है या मेरा काम नहीं हो रहा। ठीक है, टेक्नोलॉजी आपने जो यूज़ करनी है वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पे एक और बात ये है कि बिज़नेस प्लान के अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है? हम लोग बिज़नेस को डिस्कस करते हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि हम लोग इंजीनियर्स हैं तो हम लोग डायरेक्टली जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर जाते हैं, ठीक है? बट दिस इज़ व्हाई दिस सब्जेक्ट इज़ हियर, सो वी कैन टीच यू अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक हो गया जी? अच्छा, उम्मीद है बाकी लोग भी इससे सीख रहे होंगे और अगर उनका कोई सवाल है तो पूछते हैं, आगे चलें जी। सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी, जी पूछें। सर ये फॉर एग्जांपल जो आप कह रहे हैं कि हाउ टू फाइंड कस्टमर, तो आप कह रहे हैं कि कस्टमर से पूछेंगे कि उनकी नीड क्या है, तो उसके बेसिस पे हम कोई फिर जो प्रोडक्ट भी बनाते बना लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में तो मैं सर्वे कर लूँगा, किसी कस्टमर से घर जाकर पूछ लूँगा कि यार उसकी नीड्स क्या है, वो उसका मुझे आंसर देगा सर। तो जो डेटा मेरे पास कलेक्ट होगा तो उसके बेस पे मैं की प्रोडक्ट बना लूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरनेशनल कुछ सेल करना चाहता हूँ अपनी प्रोडक्ट को सर, तो उधर हम ये सर्वे वगैरह कैसे करेंगे, इसका कोई क्या जी बिल्कुल, सोल्यूशन है? थ्रू ईमेल्स, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फेसबुक, थ्रू ट्विटर, इस तरह से आप जो है ना मतलब इसके सर्वे आप करेंगे। ठीक है कि आप अपने कस्टमर्स को ईमेल करेंगे, उनसे पूछेंगे। काशिफ साहब ने एक हमारे साथ एक पिछला सब्जेक्ट भी कोई पढ़ा था, उसमें उन्होंने गालिबन इस तरह से कुछ किया भी था। तो काशिफ, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? यस सर। सर हमने जो यूके बेस्ड कंपनीज थी हमने उनको मेल की थी, उसमें पेप्सी भी आता था और बाकी भी कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, कुछ कन्वेयर सिस्टम कंपनीज थी। तो हमने उनके साथ थ्रू ईमेल डिस्कस की थी और उनको हमारा प्रोडक्ट भी पसंद आया था, उन्होंने हमें रिप्लाई भी किया था अबाउट आवर प्रोडक्ट। ठीक हो गया, मतलब सब समझ आ गई जी? ठीक हो गई, लेकिन सर दूसरी बात है कि ईमेल तो सर मैं मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर को तो सर ईमेल से टारगेट नहीं कर सकता है ना। हाँ, नहीं आपको पाकिस्तान मेजॉरिटी आपको नहीं करना, आपको एक इतना बड़ा नंबर लेकर जाना है और वो हमने लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ पे लिखा हुआ है, उसके अंदर वो बताया भी हुआ है। हमने नंबर को वहाँ तक लेकर जाना है जहाँ पे आप कस्टमर से जो बातें पूछ रहे हो वो, या जो कस्टमर की जो फीलिंग आपके पास जो आ रही हो कि कस्टमर को इस तरह की चीज़ चाहिए, वो वेरीफाई हो जाए। मतलब एक किस्म की सोशल लिसनिंग करनी है। एग्जैक्टली, कि वो वेरीफाई हो जाए कि हाँ भी कस्टमर को वाकई ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, so अच्छा, what customer needs are satisfying, अच्छा insurance of efficiency of vaccine, ensure अच्छा ये अब 3-4 कस्टमर की नीड्स जो है ना, ये मुझे तो ये ठीक लग रही है। ठीक है, अच्छा इसके साथ और एडअप हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये मुझे ठीक लग रही है। अच्छा, अब देखें, अब मैं यहाँ पे एक सवाल और पोज करता हूँ। आज हमने कहा था ना कि हम वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे और कस्टमर्स के बारे में पढ़ेंगे, सही है? और अभी इन्होंने जो स्लाइड दी उसके ऊपर वैल्यू और कस्टमर दोनों के लफ्ज आ रहे हैं। तो इसके बाद सवाल ये होगा कि आपका कस्टमर जो है वो है कौन? ठीक है, अब ये काशिफ और तैमूर से मैं सवाल पूछ रहा हूँ और बाकी सब लोग अपने प्रोडक्ट के मुतालिक इस बारे में सोचें दैट हु एग्जैक्टली इज योर कस्टमर। ठीक है, आपका कस्टमर जो है ना वो है कौन? अच्छा, तो अभी आप जरा आगे जाए, जिधर आपने बताया हुआ काशिफ कि हमारा कस्टमर ये है। ठीक है, वो आगे सर चलिए। बिजनेस कैनवस में सर वो ये बिल्कुल ये नहीं, कस्टमर ये सामने लिखा हुआ है These are कस्टमर sir. सेगमेंट। अच्छा, अभी देखें, अभी आई वांट टू मेक वन पॉइंट, आई वांट टू क्लियर वन पॉइंट। द पॉइंट इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द यूजर एंड अ कस्टमर। ठीक है, यूजर और कस्टमर में जो है ना वो डिफरेंस जो है होता है। यूजर वो बंदा होता है जो आपकी चीज को इस्तेमाल करता है, कस्टमर वो बंदा होता है जो आपकी चीज के पैसे देता है। ये हो सकता है कि ये दोनों बंदे एक ही हों। से अगर मैं जाता हूँ, मैं परफ्यूम खरीदता हूँ और मैं उस परफ्यूम के पैसे देता हूँ, ठीक है, तो परफ्यूम मैं खुद लगाता हूँ, तो मैं यूजर भी हूँ और मैं कस्टमर भी हूँ। ठीक हो गया? अच्छा, लेकिन जब मैं वैक्सीन बॉक्स की बात करता हूँ, तो वैक्सीन बॉक्स जो है वो आखिर में एक हेल्थ केयर वर्कर जो है ना, वो जो है तो
इस्तेमाल करता है, लेकर जाता है या कुछ करता है। अच्छा, वो जो इस्तेमाल होता है वो एक बच्चे के ऊपर होता है, लेकिन उस बच्चे की सेहत का कंसर्न बच्चे को खुद नहीं होता, वो उसके माँ-बाप को होता है। ठीक हो गया? लेकिन जो यूज़र होता है उस वैक्सीन बॉक्स का, वो जो है आपका हेल्थ वर्कर होता है। अच्छा, जो कस्टमर होता है ना उसका, जो उसके पैसे देता है, वो कोई और होता है। ठीक है? अच्छा, अब क्या वो जो है तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर वाले क्या उस डब्बे के पैसे देते हैं या नहीं देते? तो ये एक और तरह की वो होती है कि आखिर में पैसे इसके कौन दे रहा है? क्या हमारी रिसोर्सेज़ उसमें लगती हैं या यूएनडीपी की रिसोर्सेज़ उसमें लगती हैं? क्या उसमें हमारी रिसोर्सेज़ लगती हैं या गैवी है, एक वैक्सीन अलायंस है, एक उसकी रिसोर्सेज़ लगते हैं, ठीक है? या यूएन के रिसोर्सेज़ लगते हैं या एशियन डेवलपमेंट बैंक के। तो वो जो पैसे हैं ना, वो जो डब्बा जो हमारी शायद हम आखिर में हमारी हुकूमत उसको खरीद रही हो, ठीक है, लेकिन उसके पैसे असल में जो है तो कौन पे कर रहा है? ठीक है, तो हो सकता है एक्सक्यूज मी आपका सर, सेक्शन एक्सक्यूज मी ऑफिसर सर, पे। जी, जी। एक क्वेश्चन है सर। जी, सर अब अभी हमारे पास ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गई या ये हेल्थ लेबोरेटरीज होगी, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर की जो लेबोरेटरीज होती है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो हाँ। हमारे कस्टमर्स भी होंगे और हमारे यूजर्स भी होंगे ना, क्योंकि वो अगर हमसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाली कोई चीज़ ले लें तो मतलब वो खुद पेमेंट करेंगे और वो बॉक्सेस वो यूज़ भी खुद ही करेंगे, मतलब अपनी वैक्सीन्स के लिए वो यूज़ करेंगे वो बॉक्सेस, तो वो देखिए कस्टमर्स एंड यूजर्स दोनों होंगे या नहीं? नहीं, वो दोनों एक अच्छा देखिए, इसके अंदर आप बाइफरकेट कर सकते हैं ना। अब आपका एक से एक जो है तो उसे क्या कहते हैं, एक हॉस्पिटल है, ठीक है? अब हॉस्पिटल में अंदर आपको वैक्सीन बॉक्स के पैसे कौन दे रहा है? किसी सेक्शन का हेड आपको पैसे दे रहा होगा। जी ठीक हो गया? सर। वो बंदा आपको पैसे दे रहा होगा, या सीईओ होगा या टेक्निकल मैनेजर होगा या प्रोक्योरमेंट मैनेजर हो, जो कोई भी होगा, वो आपको पैसे दे रहा होगा। ठीक है? तो कस्टमर आपका वो वाला बंदा है। सही हो गया? जी सर, और जी आखिर सर। में वो बॉक्स यूज़ कौन कर रहा होगा? वो एक टेक्निकल बंदा होगा, जिसको हम कंपाउंडर कहते हैं, या उसने कोई हेल्थ का कोई डिप्लोमा किया हुआ है, इस तरह से कुछ किया हुआ है। ठीक है? यूज़र आपका वो होगा। तो आप देखें, उसको एक बड़ी कंपनी का नाम दे सकते हैं कि ये आरएमआई है, लेकिन आरएमआई के अंदर आपका कस्टमर कौन है और उसका यूज़र कौन है? ठीक है? और ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये अलग जो है तो होती हैं। तो आप उन दोनों को बंडल अप भी कर सकते हैं कि यार ये अगर हमारा कस्टमर है, से आरएमआई हमारा कस्टमर है, तो फिर आप यूज़र की नीड्स उसमें लिखेंगे, लेकिन उसमें जो एग्ज़ैक्टली आपका कस्टमर है, उसकी नीड्स भी आप ज़रूर लिखें। ठीक है? क्योंकि देखिए, जी यूज़र की सर। नीड ये हो सकती है कि यार इसका टेम्परेचर नीचे ना जाए, या ये आराम से खुले, या मुझे तकलीफ़ ना हो, या मैं भारी चीज़ ना उठाऊँ वगैरह-वगैरह, ये यूज़र की नीड होगी, ठीक है? कस्टमर की नीड क्या होगी कि यार मुझे तुम बताओ कि इसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन क्लाउड कंप्यूटिंग करके बताओ, इसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कहाँ-कहाँ आई है? तुम मुझे बताओ मेरा डब्बा किधर-किधर गया है? तुम मुझे बताओ मेरा डब्बा किस-किस टाइम पे इस्तेमाल हुआ है? ठीक है? अब वो मैनेजमेंट की नीड्स जो है ना, उस आरएमआई की मैनेजमेंट की नीड्स कुछ और होंगी, और उसका जो आखिर में जो बंदा होगा ना, वो ये कहेगा यार कि मुझे इसको बस रोज़ाना चार्ज ना करना पड़े, मेरा सर ना दुखाए ना ये चीज़ बस जो है तो। ठीक है? तो उसका एटीट्यूड, उसका माइंडसेट, उसकी नीड्स कुछ और होंगी, जो ऑर्गेनाइज़ेशन होगी, जो हेड्स होंगे, उसकी नीड कुछ और होंगी, ठीक है? तो फिर आपको फिर ख़्याल उस बंदे का भी करना है जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, ऑब्वियसली आपको उसका ख़्याल करना है, लेकिन आपको उस बंदे का भी ख़्याल करना है जो उसके पैसे दे रहा है। ओके सर। तो ज़्यादा ख़्याल आप किसका करेंगे काशिफ़ वैसे? सर ऑब्वियसली अपने कस्टमर पे। ठीक हो गया, सही है। सही, तो मतलब इस तरह से है कि अब आप देखें, अब आप वैल्यू किसको देंगे? अपने कस्टमर को यस सर। देंगे ना? कस्टमर को। जी सर। तो अब आप ज़रा वापस जाएँ अपनी वैल्यू के ऊपर, तो अब आपको थोड़ा-सा ज़्यादा समझ आ जाएगा कि वैल्यू में क्या आपको देना चाहिए। सर इसमें जो वैल्यू प्रपोजिशन है सर, हाँ, वो इधर तो आपने बहुत छोटा-सा लिखा हुआ है, वो जो क्वेश्चन आंसर में आपने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये फर्स्ट ही स्लाइड जो है। तो अब यस अभी सर। आप इसको कैसे चेंज करेंगे? मुझे एक आइडिया दें कि इस डिस्कशन के बाद आप इसको किस तरह से चेंज करेंगे? Sir, yes, sir, we plan to deliver a vaccine box that can sustain a, suitable temperature, or which, लोकेशन ट्रेसिंग। which have GPS and location sensors that can be easily traced by the customer, and temperature can be easily traced by the user. I mean, both can do their both can have चेक their. ठीक है, इट्स ऑलराइट, अभी खैर आपको उतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि अब आपको इसमें इम्प्रूवमेंट की समझ आ गई कि इसमें इम्प्रूवमेंट कहाँ-कहाँ पे करनी है, कैसे-कैसे करनी है, Yes, ठीक sir. है? यस सर, यस सर। आपको यू हैव टू फिगर आउट, ये भी आपको फिगर आउट करना है, ये सिर्फ़ इस कस्टमर और वैल्यू के अंदर, ठीक है? बाकी तो बिज़नेस प्लान बहुत बड़ा है, उसके अंदर अपने अभी बड़े मसले, बड़ी चीज़ें, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये फिगर आउट करना है कि आपका एग्ज़ैक्टली कस्टमर कौन है, वो कौन-सा बंदा है जो आपको पैसे दे रहा है।
ठीक है, वो आपने हेल्थ सेक्टर डिपार्टमेंट लिख दिया, लेकिन जब आप पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा तो इतना बजट ही नहीं है शायद जितने की वैक्सीन यहाँ पे हम लोग बेच रहे हैं। तो फिर आप कहोगे यार ये वैक्सीन किधर से आ रहे हैं, पैसे किधर से आ रहे हैं ना, मतलब वो जो मनी ट्रेल को आप फॉलो करोगे, पैसे किधर से आ रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान इसके पैसे नहीं दे रहा तो फिर इसके पैसे कौन दे रहा है, ये कहाँ से हो रहा है? तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने कस्टमर के करीब पहुंचते जाओगे। आई जस्ट गिव यू सम हिंट्स, यूएनडीपी, यूनिसेफ, गावी, द वैक्सीन अलायंस, ठीक है। इसको सिर्फ इनको मतलब आप लोग गूगल कर लेना कि ये कैसे उसके साथ मतलब वो काम करते हैं, लेकिन वो उस तरफ को आप लोग ऐसा ऐसा जो है ना, ये आपकी सारी जो है ना डोमेन आपकी जो है तो वो चेंज होने लगेगी। यस सर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, किस किस को आप दोनों के अलावा बाकियों को क्या समझ आई जी इस डिस्कशन से? हेलो सर। जी जी सर, जितने भी अभी हमने इससे पहले वो वीडियो देखी है उसमें ज़रा ज़बरदस्त तरीके से डिटेल में बताया गया है कि हमने अपने कस्टमर को, वैल्यू प्रोपोजिशन को और बाकी जितने भी चैनल हैं उनको किस तरह लेके जाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सर हमारा कस्टमर है कि हमने अपने कस्टमर को वो करना है कि हमारा कस्टमर है क्या और हमने क्या डिलीवर करना है। कौन है और हम उसे क्या चीज दे रहे हैं उससे, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ओके, अभी हम लोग जाते हैं एक और जो है ना, लेट्स वॉच अनदर वीडियो, लेट मी फाइंड इट फॉर यू। उबर का बिजनेस मॉडल जो है ना हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। वेल दिस इज न्यू, एवरीवन यूजेस टिकटॉक राइट? नो सर। तो उबर का करना चाहिए या टिकटॉक का करना चाहिए, दोनों में से किसका बिजनेस मॉडल हमें भी डिस्कस करना चाहिए? सर उबर कर ले सर। उबर का सही। उबर अच्छा, एक वीडियो मैंने निकाल के रखी थी, मुझे मिल नहीं रही। दिस इज अनदर वीडियो, लेट मी जस्ट चेक इट आउट फॉर यू। If this is good enough, I'll share it with you. If not, This is Anna at Railsware. okay, this is nice, not bad. Hope you can see my screen. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Product Studio helping businesses to improve their software solutions from product management and engineering perspectives. Lately, we have introduced the Lean Canvas and the Value Proposition Canvas in our videos. These are startup-oriented tools for validating business ideas. Both originate from a brainchild by Alexander Osterwalder called the Business Model Canvas. And that's what we're going to talk about today. Subscribe to us and discover more valuable knowledge with Railsware. The key difference between Business Model Canvas and Lean Canvas is that the BMC was designed for well-established businesses to track their efficiency and evolve over time, while Lean Canvas is mostly used by startups to launch their products. Entrepreneurs love the Business Model Canvas. It is a flexible, intuitive, and value-centered solution to identify risks. That's why it is often called a one-page business plan. The canvas consists of 9 sections to be filled in with particular data about the business. We recommend you to try out how to work with the tool while watching the video. Also, we decided to pick Uber as a beacon to display some real-life examples. The section we start with is customer segments. Here, you need to figure out who is the most important customer you're delivering value to. The persona method can help you to create an imaginary representation of user categories. As an outcome, you'll get a list of segments or personas. For Uber, we have 2 categories of users, drivers and passengers. Each covers particular users that will be interested in what Uber can offer. For drivers, the first segment would be a full-time driver job seekers and users who want to make extra money by driving. For passengers, those are the users without a vehicle, haters of regular taxi service, and users traveling in a foreign country. Each persona has a set of problems or needs that your product or service can solve.
And that's what you need to specify in the value propositions section. List as much as possible jobs to be done that match the needs of your target customer segments. For drivers, those are the flexible working hours and source of extra income, and for the passengers, it's an ability to pay with a bank card and lower pricing. Use value proposition canvas to decompose this section into exact jobs to be done, pains and gains of your customers, and match them to your product value. The card should appear right above. A channel means a communication unit that entrepreneurs use to reach customer segments. If you're selling your products via a website, that's one of your channel's business model canvas. Other solutions that draw customers' attention to your product are also channels. These may include search engines, social media, and even the word-of-mouth marketing. Uber uses web and mobile app, social media, and Google AdWords as its channels. This section defines how you interact with customers. Customer relations involve post-sales liaison and feedback. If you use a call center or a chatbot to interact with users, mention them here. For Uber, we state feedback rating system and social media. In the revenue streams, you need to specify the ways your business uses to get money. They mostly derive from mapping customer segments to value propositions. For example, Uber passengers pay for their ride with a bank card. Uber gets revenue in the form of a ride commission. Other revenue streams may include different billable add-ons, subscriptions, premium accounts, etc. Now, the tough part begins. Key activities cover all the things you need to accomplish to make your business work. For digital products, this involves ongoing product evolution and marketing. These activities, in turn, include recruiting, advertising, etc. If you deliver specific services, this may cover things that refine your propositions. When doing key activities business model canvas, take into account other sections you've already filled in. And for Uber, we specify the web and mobile app development, drivers recruitment, and marketing activities. Key resources are the assets you need to run your business at full force. Otherwise speaking, this is what you can't do without. Uber rests on a sophisticated technological platform. Also, it requires drivers to complement its value proposition. Services-oriented businesses mostly rely on their staff and expertise. In the Key Partners section, you need to define all the external stakeholders that can contribute to your business. We advise you to map them to key activities and key resources, if any. For Uber example, investors can fuel the development of the tech platform. Recruiting partners can help with hiring drivers, and so on. Cost structure should tell you what you spend money for. Also, you need to specify prospective costs if your business is growing. This section covers costs for hardware purchases, software development, rental services, etc. And for Uber, we state web and mobile app development, payroll, and marketing costs. Once you have filled in your business model canvas, the next step ahead is analysis. You have a broad picture of things in your business. वीडियो फिर से स्ट्रक हो गई। जी यस नेट मसला होएगा ना।
अच्छा सॉरी यार, ये पता नहीं आज पीटीसीएल को क्या हुआ। नेक्स्ट टाइम उम्मीद है कि मैं पहले इसको कॉल करके कहूंगा कि इस तरह से ना करें ये लोग। सुबह तो ठीक ही था ये। तो कहाँ पे थे हम जब डिस्कनेक्ट हो गया मैं? लास्ट में थे सर। अच्छा, तो इट्स ऑल राइट, मतलब आप लोगों ने सब कुछ तकरीबन जो है वो देख लिया उबर का कि क्या उसका बिजनेस मॉडल है, क्या उसकी चीज़ें हैं, कैसे काम करता है। अच्छा, यहाँ पे पहुँचने के लिए ना आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। ये बिजनेस मॉडल नंबर 40-50 होगा जो उबर का फाइनल वो होगा कि हाँ भाई हमने इस तरह से चलना है। शुरू में चीज़ें वेग ही होती हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्पेसिफिक जो है वो होती रहती है। ठीक हो गया? ओके। So this is like we could say like this is a good start, ठीक है। और इसके बाद अच्छा मैं कोशिश ये किया करें कि आप लोग चीज़ों को यहाँ पे प्रेजेंट किया करें, वरना आपसे चीज़ें रहती जाएंगी और आखिर में आपसे होगा नहीं। ठीक है, आखिर में आप जो चीज़ अगर आपने साथ साथ में काम नहीं किया तो आप हमें बिजनेस मॉडल कैनवस जमा तो करवा दोगे, लेकिन वो इक्वलेंट होगा मॉडल 1 के ना। सही है। और फिर वो ऑब्वियसली फिर आपका जब हम चेक करेंगे तो उसके नंबर कम आएंगे। तो आपका आर्गुमेंट ये होगा कि आपने जवाब तो ठीक लिखा हुआ है, और आपका जवाब ठीक ही होगा। सही है। लेकिन अब काशिफ ने अभी जैसे जवाब दिया तो वो जवाब ठीक था, लेकिन काशिफ जब इसको 10 दफा इंप्रूव करके एक चीज को लिखेगा तो वो जवाब ज्यादा ठीक होगा। तो इसीलिए उस टाइम पे किसी के नंबर ज्यादा आ रहे होंगे, किसी के कम आ रहे होंगे। रीजन ये होगा कि किसी का इनपुट ज्यादा होगा, किसी का इनपुट जो है तो वो कम होगा। ठीक हो गया जी? जी जी सर मैंने बनाया हुआ है, अगर आप कहें कि मैं प्रेजेंट करूं सर। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके सर। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? जी जी बिल्कुल विजिबल है। अच्छा सर। सर तो ये हमारा पहला जो वर्जन है बिजनेस कैनवस मॉडल का, उसमें सर हमने जो हमारे कस्टमर्स होंगे, कस्टमर सेगमेंट सबसे पहले हम शुरू करेंगे। उसमें हमारे कस्टमर जो हैं वो टोयोटा कंपनी है, होंडा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ग्लास है और एचपी लैपटॉप कंपनी है सर। बोलते रहिए जी, बोलते रहिए। अच्छा, ये बेहतर होगा कि मैं आपसे साथ साथ में सवाल पूछता रहूं, ठीक है? ऐसे ही बेहतर जी होगा। जी जी सर। अच्छा तो अच्छा कोई शरियार से कोई सवाल पूछना चाहता है जी? पहले मैं आप लोगों को लेट जी सर, ये बिजनेस मॉडल किस चीज के बारे में है? मतलब टाइटल क्या है इसका? इसका बड़ा जो टॉपिक है ऊपर लिखा हुआ है, जी। जूम अगर थोड़ा सा कर ले, नजर नहीं आ रहा, ब्लर आ रहा है। आप गालिबन आप मोबाइल से हैं या आपका ये तो मैंने वो किया हुआ है, स्लाइड शो मैंने किया हुआ है। अच्छा आप खैर बता। प्रॉपर विजिबल है ये तो। F5 में दबा देता हूँ दोबारा से। बिलाल को बता दें, वर्बली बता दें। हेलो जी शरियार, बिलाल को वर्बली बता दें। अच्छा सर, तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इन प्रोसेस मेजरमेंट के बारे में है। हमने जो हमारे जो कस्टमर सेगमेंट हैं वो टोयोटा है, होंडा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है और एचपी लैपटॉप कंपनी है। इन प्रोसेस मेजरमेंट सर ये क्या चीज होती है? मतलब ये पहली ये बार मैं आपको बताता हूँ। इन प्रोसेस मेजरमेंट ये है कि हम जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनमें जो प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं तो वो कैसे बन रही होती है, फ्रॉम द स्टार्ट से लेके पैकेजिंग तक उसकी जो प्रोसेस होता है उसको, मतलब एक प्रोडक्ट इनपुट से आउटपुट बनता है तो उसके मिड में जो प्रोसेस हो रहा था उसको इन प्रोसेस मेजरमेंट कहते हैं। उसकी जो मेजरमेंट्स होती हैं प्रोडक्ट को मतलब वो अश्योर करने के लिए कि ये ठीक बन रही है, यानी उसको इन प्रोसेस मेजरमेंट कहते हैं। ये बेसिकली मतलब जो है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल का आपका जो डिपार्टमेंट होता है जिसमें लोग बैठ के डायमेंशन मेजर कर रहे होते हैं, ये उसको ऑटोमेट कर रहे हैं। जी सर। ये बेसिकली सर एक किस्म की कंसल्टेंसी टाइप नहीं, सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस प्रोवाइडर इन प्रोसेस मेजरमेंट इज अ प्रोडक्ट, ठीक है?
तो ये एक प्रोडक्ट करता क्या है कि आपकी डायमेंशनल मेजरमेंट करता है। तो आपकी से क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आपकी डायमेंशन जहाँ पे मेजर हो रही होती है वहां पे ये प्रोडक्ट लगा हुआ होता है। तो इंस्टेड ऑफ पीपल मेजरिंग द डायमेंशंस, यस दिस सर। प्रोडक्ट मेजर्स द डायमेंशंस फॉर यू। सही है सर, मतलब एक किस्म की इंस्पेक्शन कंपनी या क्वालिटी कंट्रोल। डिपार्टमेंट होगा उसमें। हाँ एक सही है। प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है जिसमें कैमरा लगा हुआ है, कैमरा के पीछे जो है तो मशीन विजन और एआई लगा हुआ है, और वो आपको हर एक चीज जो है ना वो आपको उसको नाप रही है, उसकी डायमेंशंस को चेक कर रही है। ठीक है सर। ठीक है शेर यार, आई होप यू आर मोर क्लियर। जी सर। अच्छा जी, चलें जी, अब यू क्लियर अबाउट द प्रोडक्ट। कस्टमर सेगमेंट के हवाले से किसी के सवाल हैं जी? नो वन, देयर सम ऑब्वियस क्वेश्चंस व्हिच आर देयर। अच्छा, तो शेरियार हमें बताएं कि आप कहते हैं टोयोटा ऑटोमोबाइल कंपनी आपसे लेगी, तो क्या वाकई लेगी आपसे? क्यों लेगी आपसे टोयोटा ऑटोमोबाइल कंपनी ये चीज? सर इन प्रोसेस मेजरमेंट जो है वो मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, वो तो मतलब अपने जनरल मेथड्स यूज़ करती है। ये हमारा जो प्रोसेस है ये तो हम ऐसा ऑटोमेट उनको कर रहे हैं कि उसकी वजह से इनके लिए मतलब उनका वेस्टेज, उनकी जो टाइम मैनेजमेंट है और जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो कम हो जाएंगे और उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो ओबियसली वो हमसे लेंगे। ठीक है, तो टोयोटा ऑटोमोबाइल कंपनी तो एक मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ये तो जी मतलब एक वो जनरल सी बात होगी। ठीक है, टोयोटा ऑटोमोबाइल कंपनी में आपका कस्टमर कौन है? सर, जो टोयोटा कंपनी के सीईओ हैं जो हमसे मतलब डील करेंगे कि आप हमें ये चीज़ प्रोवाइड करें। हेलो। एक्सक्यूज मी सर, मतलब एक तो इन प्रोसेस मेजरमेंट्स होते हैं कुछ कंट्रोल करने के लिए, जैसे कुछ वेस्टेज कंट्रोल के लिए हो, एक्सेस जो मटेरियल है वो ना वेस्ट हो, तो कस्टमर सेगमेंट्स में जो कस्टमर होगा वो ये चीज़ डिमांड नहीं करेगा। वो तो इसमें जितने भी ये मैंने वो लिखे हैं ना, ये इंडस्ट्रीज लिखे हैं, वो जो हमसे डिमांड करेंगे तो हम उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम आगे वैल्यू प्रोपोजिशन में और की एक्टिविटीज़ में जाएंगे। तो ये तो मैंने सर मेंशन किया कि कौन कौन से हमारे कस्टमर्स होंगे इन प्रोसेस मेजरमेंट के थ्रू। ओके ओके, मतलब ब्रॉड टर्म यूज़ कर रहे हो ना आप, जी अभी जी। स्पेसिफिक नहीं गए हो। तो स्पेसिफिक यही है ना कि हमने टोयोटा कंपनी, मतलब हमने टोयोटा कंपनी को टारगेट किया, होंडा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, ग्लास इंडस्ट्री को, और जो लैपटॉप कंपनी है उसको हमने टारगेट किया हुआ है। सही 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 सही। जी। अच्छा जी, आपको ना जब आप इस प्लान को रिफाइन करेंगे तो आपको टोयोटा के अंदर अपने स्पेसिफिक कस्टमर जो है ना आपको ढूंढने होंगे, या होंडा के अंदर, या जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आप बात कर लें। सर, ये तो अगर होंडा कंपनी की बात करें या टोयोटा कंपनी की बात करें, उसके जो ओनर्स होंगे या सीईओ होंगे या मैनेजर्स होंगे वही हमें मतलब वो करेंगे क्योंकि वो तो सर सुपीरियर होते हैं, उनको डिसीजन लेना होता है, तो उसी के मुताबिक हम बात करेंगे सर। एग्जैक्टली। तो आपके यूजर जो हैं वो तो शॉप पे हो सकते हैं, लेकिन आपके कस्टमर वो होंगे जो उसके लिए आपको पैसे देंगे। जी सर। तो वो अक्सर ओनर नहीं होते, ओनर्स तो सिर्फ एक वो मतलब पैसे इन्वेस्ट करके बैठे होते हैं, वो उसके मैनेजिंग जी जी डायरेक्टर या टेक्निकल मैनेजर या मैन्युफैक्चरिंग प्रोक्योरमेंट या इस तरह के लोग जो है ना वो, जी ये जो जो क्वालिटी सेल में जो लोग हैं उसके जो बड़े हैं ये लोग होंगे। सही सर, सही सही सही। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो कस्टमर्स की बात आ गई। अच्छा, यू गाइस शुड पोज द सेम क्वेश्चंस एज वेल फॉर योर प्रोजेक्ट एंड फॉर लाइक दीस प्रोजेक्ट्स एज वेल। ठीक है सर। अच्छा, जी जी सर मैं कुछ कहना चाहूँ सर, अगर हमने ये टोयोटा मोबाइल कंपनी या होंडा मोबाइल कंपनी ये सेलेक्ट किया हुआ है, अगर हम इसमें वो वाले नाम यूज कर ले, अगर आपने बताया कि क्वालिटी डिपार्टमेंट के जितने भी बड़े होंगे वो आप सेलेक्ट करें, वो हमारे यूजर हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं। आप, योर वॉइस इज ब्रेकिंग डाउन। सर जैसा कि आपने बताया कि जो हमने नाम लिखे हैं ना, जैसे टोयोटा मोबाइल कंपनी, होंडा ऑटोमोबाइल कंपनी, इस तरह के नाम, या अगर हम इसको इसके बजाय हम ये लिख ले कि जो मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के जितने बड़े लोग होते हैं वो हमारे कस्टमर हो सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, देन फिर आपका जो कस्टमर सेगमेंट है आपने ज्यादा बेहतर तरीके से डिफाइन किया। ठीक है सर।
ठीक है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर की नेट का मसला है सर। हेलो सर। नेट इशू। जी नासिर, आप जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये ज्यादा बेहतर तरीका है कस्टमर सेगमेंट्स को लिखने का। ठीक है कि आपके जो कस्टमर सेगमेंट है वो ये वाला सेगमेंट है, इनके साथ आपने इस तरह से काम करना है, ये चीजें आपने करनी है। ये बिल्कुल बेहतर तरीका लिखने का। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी जी। सर ये जो आम लोग होते हैं ना, मतलब ये हम कस्टमर में ला सकते हैं जो मतलब इस मतलब उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मतलब चूज करे और वो फिर अपने बड़ों को कहे कि हमने ये वाला प्रोडक्ट लेना है। तो हम ये कस्टमर सेगमेंट में वो आम लोग लिख सकते हैं। मतलब अगर हमारा भी टरबाइन का है तो हम इसमें लिख सकते हैं कि विलेज पीपल, जो कि नाजिम को कहे कन्विंस करेंगे कि हमने ये टरबाइन लगाना है, ये प्रोडक्ट। अच्छा, इसको आप इस तरह से इसको आप लिखेंगे। ठीक है, इसको आप इस तरह से करेंगे कि आखिर में आपको पैसे जो है वो नाजिम दे रहा है, इसी तरह ना। जी सर। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि नाजिम ये चाहता है कि इन लोगों के मसले हल हो जाएं, जो भी उनका मसला है जिसके लिए वो नाजिम के पास गए थे। दूसरी जी बात भी इसी तरह है। ठीक है, जी सर। इसका मतलब है कि नाजिम जो है वो आपको वही बातें बताएगा जो कि यूजर ने आपको बतानी। जी ठीक है, प्लस नाजिम के अपने भी कोई इंटरेस्ट होंगे, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे उस चीज के अंदर। यार मुझे यहाँ से ये भी पता करवाना है, ये भी पता करवाना है, वगैरह वगैरह। सही। ठीक है, तो आपका कस्टमर फिर कौन हो गया? वही बंदा हो गया जो आपको पैसे दे रहा है। उसने आप तक यूजर की नीड भी पहुंचाई, या आपको रास्ता दे दिया कि जाओ यूजर से बात करो। ठीक है, और प्लस उसने अपनी नीड भी पहुंचाई। तो इसका मतलब है कि जो बंदा आपको पैसे दे रहा है उसके पास जो डॉक्यूमेंट है, या जो दोनों बंदों की जो रिसोर्सेज हैं, दोनों बंदों की जो नीड्स हैं, वो सबसे ज्यादा मौजूद है। जी सर। ठीक है, तो आप नाजिम को ही कस्टमर कहें। ठीक है, क्योंकि कस्टमर आपका नाजिम ही है। सही हो गया। आपका कस्टमर जो है वो नाजिम ही है, लेकिन वो जो नीड्स जो है वो सारी की सारी वो उन लोगों की नीड्स है, प्लस नाजिम की अपनी नीड्स है, जो भी गवर्नमेंट की नीड्स है। ठीक है सर। ठीक है, अब देखें जैसे अब ये इसकी हम बात करते हैं जो इन प्रोसेस से क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो मसला है। तो इसमें अब जो नीचे बंदा काम कर रहा है उसकी नीड्स है। ठीक है, प्लस जो ऊपर जो मैनेजर बैठा है उसको ये चाहिए होगा कि यार अगर मेरी जो वेरिएशन है, जो हमारी नॉर्मल डायमेंशन है उससे मेरी जो वेरिएशन है वो कितने पार्ट्स पे कितनी दफा आई है। अब जो बंदा काम कर रहा है ना उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। उसका टोटल ये लेना देना कि यार ये पार्ट एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। ठीक है, लेकिन जो बंदा आपको पैसे दे रहा है ना वो उसके साथ ये भी जानना चाहता है कि यार मेरी कौन सी मशीन से पार्ट, या कौन सा पार्ट ज्यादा एक्सेप्टेड आ रहा है, ज्यादा रिजेक्टेड आ रहा है, या वो ज्यादा रिजेक्टेड के करीब है, ज्यादा एक्सेप्टेड के करीब है, ताकि उसको पता चले कि अगर फ्यूचर में उससे कोई नई मशीन लेनी है तो वो मशीन जो है उसने कौन सी लेनी है जिसके पार्ट जो है वो सही मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे। या उसने अगर किसी लेबर को कहना है कि तुम ठीक तरीके से काम करो, तो वो कौन सा लेबर है जिसको उसने कहना है। ठीक है, अब ये आपको जो यूजर है जो कि इसको यूज कर रहा है ना, उसका इसके साथ इन बातों के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो ऊपर जो टेक्निकल मैनेजर बैठा हुआ है उसको ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो जो आपको पैसे दे रहा है उसको वो यूजर वाली इंफॉर्मेशन भी चाहिए, प्लस उसको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए। सही है सर। अंडरस्टूड? जी, लेकिन सर अब मैं मतलब अब एक बड़ी कंपनी है तो उसमें वो फाइनेंशियल एक मैनेजर होगा जो जिसके थ्रू मतलब वो पैसे प्रोसेस करेगा, तो वो भी तो क्वेश्चंस कर सकता है ना। या एक ऐसे सीईओ जिसकी न्यूली स्टार्टअप हो, तो सीईओ भी तो इन्वॉल्व हो सकता है। वो अगर ये कहे कि बिल्कुल, मेरे जो भी आप देखें, जो whoever is paying you the money, whoever is जो paying you मनी the पे money करेगा वही and मेरा whatever कस्टमर they are सेगमेंट में asking आएगा। for it। सर देखें मेनली अगर आखिर में जो प्रोसेस करता है वो अकाउंट डिपार्टमेंट करता है, लेकिन आप तक जो बातें पहुंचाता है वो तो टेक्निकल ऑफिसर पहुंचाता है ना। जी सर। आपको हायर टेक्निकल ऑफिसर करता है, आपके टेंडर वो खोलता है, आपके सारे काम वो करता है, पैसे आपको सिर्फ वो प्रोसेस करके देता है। ठीक है, लेकिन वो जो टेक्निकल ऑफिसर होता है ना वो आपका कस्टमर होता है। आपने जिस बंदे को कन्विंस करके अपनी प्रोडक्ट उस कंपनी के अंदर घुसानी है ना, वो बंदा आपका कस्टमर है। अगर वो फाइनेंस वाला है तो हाँ बिल्कुल, फिर फाइनेंस वाला। ठीक है सर, ठीक है सर, क्लियर हो गया। ठीक हो गया। जी सर। अच्छा अच्छा जी, ये तो होगी ना जी इनकी कस्टमर सेगमेंट ना। ठीक है, अब आते हैं जनाब इनकी वैल्यू प्रोपोजिशन की तरफ।
जी सर, तो वैल्यू प्रोपोजिशन में सबसे पहले हम जब सर इनका जो वैल्यू प्रोपोजिशन हमने बनाया वो इसके थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू या एआई या मशीन विजन के थ्रू जो है हमारा इनका डिफेक्ट मिनिमाइजेशन होगा, वेस्ट रिडक्शन होगा, हम इनको सर्विसिबिलिटी एक तरह से दे रहे हैं, डिस्काउंट देंगे, टाइम मैनेजमेंट होगा, प्राइस मतलब उसमें उसकी वजह से प्रोसेस की वजह से निगोशिएबल हो जाएगी, रिस्क रिडक्शन होगा, एक्सेसिबिलिटी होगी और यूजर फ्रेंडली होगा जो सॉफ्टवेयर हमने प्रोवाइड किया सर। ठीक है। अच्छा, वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर आपका ठीक है, वेस्ट रिडक्शन, डिफेक्ट मिनिमाइजेशन, सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, इस पे किसी कोई सवाल हो? सर वही सर आपने जो बताया था हमें कि मतलब स्पेसिफिक एक साइट को चूज किया जाए ना, मतलब ये तो बिल्कुल ब्रॉड टर्म में यूज हो रहा है। तो ये असल में ये चीज़ें जो है ब्रॉड टर्म में तो इस तरह नहीं है कि एक जो भी इंडस्ट्री होगी वो जो चीज़ बना रही होगी वो इन सब चीज़ों को देख रही होगी। तो इसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इससे हटकर हम तो वो फिर इनके लिए वो जो चीज़ें नहीं है वो प्रोवाइड कर सकते जो उनको चाहिए। अच्छा मुनज़्ज़र, आप जरा इनको कोई एग्जांपल देना, फिर इनको कोई सजेशन दे कि इसको कैसे स्पेसिफिक कर सकते हैं आपके ख्याल से। सर अब जैसे सर आपने हमें हाइड्रो टरबाइन के बारे में फर्स्ट बताया था कि मतलब आप किस तरह के लोगों को फोकस कर रहे हैं, तो मैंने सर जस्ट में मतलब स्पेसिस के नेम भी डिफाइन कर लिए थे, प्लस गाड़ी ये वैल्यू प्रोपोजिशन में सर चीप प्रोडक्शन के अलावा गारंटी, एनर्जी एंड प्राइस स्टेबिलिटी। तो आपने कहा नहीं स्पेसिफिक जाओ, जस्ट नेम डिफाइन करो, या जो तुम्हारा जो कस्टमर है सर वो स्पेसिफिक क्या चीज़ चाह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चाह रहा है, चीप चाह रहा है, क्या चाह रहा है, तो उस तरफ ही सिर्फ जाना चाहिए सर एक स्पेसिफिक साइट पे। सर इसमें तो सर बहुत सी मतलब सर्विसेज के बारे में डिफाइन हो गया है, वेस्ट भी है सर, फिर डिस्काउंट, टाइम मैनेजमेंट भी हो रही है। असल में ये जो है ना ये इन प्रोसेस मेजरमेंट है, ये एक पूरा प्रोसेस है, तो इसलिए इसमें ये चीज़ें आ रही हैं। नहीं, अच्छा, इन प्रोसेस मेजरमेंट की मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, इन प्रोसेस मेजरमेंट की ये एक जो है ना प्रोडक्ट है, ठीक हो गया है। तो प्रोडक्ट क्या है कि प्रोडक्ट में आपका एक कैमरा होता है, कैमरे के साथ कोई खास तरह का स्टैंड होता है, उसके पीछे एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। ये जो है ना ये प्रोसेस का ये मतलब नहीं है कि ये पूरा एक वो कोई और सा निज़ाम है, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट है जो आपकी डायमेंशंस को इंटेलिजेंटली मेजर करता है, फुल स्टॉप। एक फिजिकल प्रोडक्ट है जो सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस करता है, ठीक है। जैसे आपका लैपटॉप है ना, लैपटॉप एक फिजिकल प्रोडक्ट है जो कि सॉफ्टवेयर पे बेस करता है। दिस थिंग इज द सेम शेरिया, ठीक है। तो वो एक प्रोडक्ट है जो कि सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस करता है, सही हो गया। और वो जो है तो इस तरह के काम करता है, या ये मतलब डायमेंशंस चेक करता है। जी सर, असल में ये सर प्रोसेस मेजरमेंट में ये चीजें हैं सर। आपके पास एक वर्नियर कैलिपर होता है, एक स्केल होता है ना, ये बिल्कुल वही चीज है, लेकिन ये ऑटोमेटेड है। बिल्कुल सर, ठीक हो गया। तो इसमें अब आप देखेंगे अब थोड़ा सा कैसे से टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल कर तो रहा है, मतलब टाइम मैनेजमेंट में ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में ये हेल्प कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो कैसे दे रहा है, क्या दे रहा है, कौन सी दे रहा है, ठीक है। मतलब वेस्ट रिडक्शन एक बड़ी एक एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, जो कि वो दे रहा है। अब जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो फिर दे तो रहा है, लेकिन क्या हर एक चीज टाइम, क्या वो तो वैक्सीनेशन बॉक्स भी का टाइम मैनेजमेंट नहीं दे रही उनको, वो वैक्सीन बॉक्स भी तो टाइम मैनेजमेंट दे रही है कि उनको बता रही है मेरा कौन सा बंदा जीपीएस के थ्रू किधर गया है, कैसे गया है, क्यों है, ठीक है। रिस्क रिडक्शन भी उसमें भी, वैक्सीन बॉक्स में भी तो रिस्क रिडक्शन हो रही है ना, कि आपकी वैक्सीन खराब नहीं होगी, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा जो है ना जरा वो फोकस रह के ना कि स्पेसिफिक जो है वो क्या बातें हैं। अच्छा सर, ठीक। अब देखिए वेस्ट रिडक्शन आपकी बड़ी सर इसको हम थोड़ा सा और इसके जब आप वर्जन 2 अपने आप थोड़ा सा आएंगे, एक्सप्लेन कर ले सर। जी जी प्लीज एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन तो नहीं, मतलब इसको हम ये कि आप इस पे सोचें और आप देखें, आप इसको इस तरह से लेना, आप सब आपका जो बंदा जो भी प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ आपके लिए नहीं, ठीक है। कि मैं जब ये बिजनेस मॉडल किसी कंपनी वाले के सामने रखूंगा और मैं उसे कहूंगा मैं तुम्हें ये वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्या वो उस वैल्यू के, पहली बात तो कि क्या आपकी चीज वो वैल्यू असल में दे रही है या नहीं, वो इसका एक मतलब समोसों के साथ चटनी फ्री वाला चक्कर, ठीक हो गया। तो क्या उसकी असल वैल्यू क्या है, असल वैल्यू समोसा या असल वैल्यू चटनी है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा वो बंदा जब आपको पैसे दे रहा है तो क्या आपको उस वैल्यू के पैसे देगा या नहीं देगा, या वो आपको किस वैल्यू के देगा, तो फिर आप उसी वैल्यू उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करें। वो एक से ज्यादा हो सकती है,
ठीक है, बट दे शुड बी स्पेसिफिक एंड दे शुड बी स्ट्रांग। इस तरह से हम इसको इंप्रूव करेंगे सर। मतलब इन चीजों को हम श्रिंक करके स्पेसिफिक उस पे चले जाएं। देखिए श्रिंक करके नहीं, श्रिंक करके इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ। अब देखिए, अब आपने जो वेस्ट रिडक्शन लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल टू द पॉइंट है, ठीक हो गया, सही है। ये वो जो बंदा है उसको समझ आएगी कि यार जो बंदा क्वालिटी कंट्रोल में काम कर रहा है कि यार वेस्ट रिडक्शन का क्या मतलब, ठीक है। ये बिल्कुल आपका जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल ये वाला काम भी कर रहा है। इस तरह के और काम भी हो सकता है आपका प्रोडक्ट कर रहा हो, ठीक हो गया। तो वेस्ट रिडक्शन बिल्कुल वो है। जब हम आप कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट इस मतलब ये कैसे टाइम मैनेजमेंट कर रहा है ना ये प्रोडक्ट, उस तरह मतलब कर तो रहा होगा, कोई वो होगा ना, समोसों के साथ चटनी तो चल रही होगी, लेकिन वो तो वैक्सीन बॉक्स भी टाइम मैनेजमेंट कर रहा होगा, कोई और प्रोडक्ट भी टाइम मैनेजमेंट कर रहा होगा, वगैरह वगैरह ना। तो ये स्पेसिफिक इसकी वैल्यू क्या है जो आप चीज बना रहे हैं, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू लिखो। ठीक है सर। ठीक है, और ये वैल्यू देखो आपकी नजर से नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू आपके कस्टमर की नजर से होनी चाहिए। आपके ख्याल से सब कुछ कर रहे हैं, कस्टमर के ख्याल से ये चीज क्या कर रही है। तो इसका एक तरीका ये होगा कि यू स्टार्ट टॉकिंग विद पीपल वो वर्किंग इन फैक्ट्रीज। आपके दोस्त होंगे ना जो कि फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो, जी सर, ठीक है। तो उनके साथ जरा बातचीत करना शुरू करो कि यार अगर इस तरह की एक चीज हो, जैसे लैपटॉप है, इस तरह का मैं तुम्हें कैमरा दे दूं, वो इंटेलिजेंट कैमरा होगा, तुम्हें बताएगा इसकी डायमेंशंस क्या है, तो तुम्हारे लिए इसकी क्या वैल्यू है, तुम इसको किधर यूज करोगे। ठीक है सर। ठीक है, स्टार्ट टॉकिंग विद योर कस्टमर्स। सो दिस इज सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा, चूंकि हम लोग मतलब आज जरा हम कस्टमर और इसी तरफ हैं, ठीक है, तो बाकी चीजें जो है तो हम उसको वो साथ में फिर देखेंगे। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा, एनीवन एल्स वुड लाइक टू प्रेजेंट? अच्छा जी, so give me a second. So my internet from my laptop is back. जी नासिर साहब, आपका सवाल है जी? No sir. No sir. अच्छा, you raise your hand. That's fine. Yusuf, can't hear you. You have mic. सिर्फ आपका माइक बहुत शोर कर रहा है। अच्छा यूसुफ, बाय अ न्यू माइक फॉर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। आपका माइक बहुत ज्यादा शोर कर रहा है, जिन बेचारों ने हेडफोन पहने हैं उनको बड़ी मुश्किल गुजर रही होगी। अब बेहतर है जी, बोले जी। अब बेहतर है। मैं कह रहा था सर मैं प्रेजेंट कर दूं इसको, प्लीज प्लीज। अच्छा, जब काशिफ या शेरियार जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं, बाकी के लोग सीख रहे होते हैं या नहीं सीख रहे होते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस सर। क्योंकि एक तरीका तो ये कि मैं आपको सिर्फ स्लाइड्स पढ़ाता रहूँ ना, तो वो से आपको समझ आएगी, लेकिन वो मोनोटोनस हो जाएगा। मुझे डर ये कि आप सो जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। इससे मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा एंगेज रहते हैं। नहीं सर, अच्छा तरीका है सर। हाँ मुस्तफा जी, स्टार्ट करें जी। शो हो गया आपको? जी जी। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आता हूँ इसकी तरफ। अपना ये हेलमेट कूलर है, मैं की पार्टनर्स की तरफ आता हूँ। पहले जी कस्टमर मसला बताएं, सबसे पहले प्रॉब्लम बताएं, फिर कस्टमर बताएं, फिर वैल्यू बताएं। ठीक है सर। बेसिकली अक्सर औकात ये लेबर्स वगैरह हो गए, इंजीनियर्स हो गए, और काफ़ी ऐसा तबका हो गया कि जो बाइक वगैरह पे घूमता फिरता है, तो उसको गर्मी में बड़ी मुश्किल होती है काम करने के लिए। तो उस हवाले से फिर हम लोगों ने एक डिज़ाइन की है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है हेलमेट कूलर का। तो ये उन लोगों के लिए, जब वो लोग इस्तेमाल करेंगे तो उनको सबसे पहली बात तो ये है कि वर्क जो कर रहे हैं, जितना वो कर रहे हैं, अगर वो 100 में से 60% दे रहे हैं तो वो 80, 75, 80 तक पहुंच जाएंगे। अच्छा मुस्तफा, लेट मी स्टॉप यू हियर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेल डन फॉर क्लियरिंग योर कस्टमर सेगमेंट्स। आप बहुत क्लियर थे इसमें, ठीक है। आपने अब देखिए, मुस्तफा ने, मुझे इसकी एक बात अब बहुत पसंद आई है, उसने सीधा जो है तो कहा कि यार एक मेरे जो मजदूर काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, लेकिन वो उसको थोड़ा सा और कस्टमर सेगमेंट पे ये कहता है जो हार्ड हैट पहनते हैं, इंजीनियरिंग टर्म्स में ना, जो हार्ड हैट पहनते हैं इंजीनियरिंग वाली, ठीक है, वो लोग नंबर एक।
नंबर 2 इसने मुस्तफ़ा ने कहा भाई कि जो बाइक चलाते हैं गर्मी के अंदर, ठीक हो गया। नंबर 2 ये बड़े जबरदस्त कस्टमर सेगमेंट जो है आइडेंटिफाई कर दिया। अच्छा, नंबर 3 मुस्तफ़ा, आई वुड ऐड अ कस्टमर सेगमेंट फॉर यू बिकॉज यू आर सो स्पेसिफिक। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, एक कस्टमर सेगमेंट आपका जो है तो वो जो हमारे डॉक्टर्स नहीं आजकल जो बैठ रहे और जो कोरोना की वजह से पेशेंट्स को नहीं देखते या उनको कोरोना हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल एक बिल्कुल सर। ये जो हेलमेट है, और वो आप देखेंगे कि वो जितना सामान पहनते हैं बेचारे बिल्कुल पानी से शराबोर हुए जाते हैं। आगे फिर रोजे भी हैं, जून जुलाई अगस्त भी आ रहा है, कोरोना भी ज्यादा हुआ, उनको पूरी किट पहननी होती है। ठीक है, तो उसके लिए भी यही इसी तरह का एक हेलमेट जो है हम लोग वो बना सकते हैं कि उनके रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर ये कूल भी करेगा और उसको वायरस को भी रोक देगा। ठीक है, तो एक थर्ड कस्टमर सेगमेंट जो है ना, इसको आप यहाँ पे अपने पास ऐड कर लें। अगर इसकी ठीक है समझ सर, नहीं मैं ऐड कर देता तो पूछ लें, अगर आपको समझ नहीं आई कि मैं क्या कह रहा हूँ। आ गई है सर, समझ आ गई चलो है ठीक है समझ। सही। अच्छा चलिए ठीक है, जबरदस्त, वेल डन। नाउ गो टू द वैल्यू प्रोपोजिशन। सर वैल्यू प्रोपोजिशन में इसके हम लोगों ने ब्लूटूथ इंस्टॉल किया हुआ है, साथ में जीपीएस सिस्टम भी है। फायदा इसमें होल्ड ऑन होल्ड ऑन, देखो जितना आपने पहले कस्टमर सेगमेंट में आपने ठीक बोला था ना, उतना ही आपने यहाँ पे गलत बोल दिया है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको वीडियोस भी दिखाई, मैंने आपसे डिस्कस भी किया, वैल्यू प्रोपोजिशन हैज नथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी। सही हो गया, तो आप मुझे ये ना कहें कि मैंने ब्लूटूथ, चाहे वो ब्लूटूथ के थ्रू आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो कि वैल्यू दे रही है, वी डोंट केयर। ठीक हो गया, सर आई कांट इसमें यहाँ सर यहाँ मतलब पे जो है ना, होल्ड ऑन मतलब, यहाँ पे जो है ना आप सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि आप वैल्यू क्या दे रहे हैं, कस्टमर को आप वैल्यू क्या दे रहे हैं, डेट्स इट। ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी चाहे ब्लूटूथ लग रहा है कि पूरा एयर कंडीशनर आप उसको गोद में पकड़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कस्टमर को वैल्यू क्या दे रहे हैं वो हमें बताएं सिर्फ, और बी स्पेसिफिक। सर इसमें सर क्योंकि मुस्तफ़ा मेरा पार्टनर है सर, मैं इसमें ये ऐड कर देता हूँ कि सर फॉर एग्जांपल ये कूलिंग इफेक्ट जो है ना सर, तो ये भी एक किस्म की वैल्यू हो गई ना कि समर्स में हम उनको ये हेलमेट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको एक किस्म की कूलिंग इफेक्ट दे रही है, ये भी एक बिल्कुल किस्म की वैल्यू हो गई। अच्छा दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल अगर ये हम पाकिस्तान में इनको दे रहे तो इंटरनेशनल मार्केट्स में इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर वो ये प्रोडक्ट यूएस से इंपोर्ट करते हैं या यूके से इंपोर्ट करते हैं तो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर सेम प्रोडक्ट हम इनको पाकिस्तान में बना कर दें तो बहुत काफ़ी गैप होगा प्राइस अच्छा, में। दिस इज नॉट अ वैल्यू नंबर 1। ठीक है, दिस इज पहली आपकी जो वैल्यू थी वो ठीक थी कि उनसे हीट से उनको बचा रही है, ये उनकी वैल्यू। बिल्कुल ठीक है, ये जो दूसरी जो है ना ये वैल्यू नहीं है। सही। अच्छा, पहली बात तो ये कि यूएस वाले भी यूएस में नहीं बनाते, वो चाइना में बनाते हैं। दूसरी बात ये है कि जो चाइना में बनाते हैं वो पाकिस्तान से भी अक्सर सस्ता बना देते हैं, उसकी क्वालिटी फिनिशिंग भी बेहतर होती है। सही है, वो प्राइस उसी तरह से जो है ना मतलब वो होती है, लेकिन फिर अपना टैक्सेशन का निजाम होता है, और जो चीजें वो महंगी बेचते हैं वो इसलिए महंगी नहीं बेचते कि उनकी प्रोडक्ट बनी महंगी है, वो इसलिए महंगी बेचते हैं कि उनका डिजाइन महंगा है। प्रोडक्ट बनने में तो शायद जो आपके पास मोबाइल है, एक ही मोबाइल आपको जो है तो 30,000 का भी मिलता है और 2.5 लाख का भी मिलता है और 3 लाख का भी मिलता है। मोबाइल काम तो वही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मटेरियल तो वही लगा हुआ है, लेकिन उसके डिजाइन में फर्क है, वो जो वैल्यू दे रहे हैं वो अलग है। ठीक हो गया, तो दूसरी बात ये है कि एक तो चीप इज नॉट गुड। ठीक है, चीप डज नॉट मीन गुड। सही ये हो गया। सही है, ये डिजाइन सर हो गए। प्राइसिंग का एक अलग से टॉपिक है जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया, लेकिन ये चीज वैल्यू नहीं है कि हम उधर नहीं बना रहे इधर बना रहे हैं, हम आपको सस्ता दे रहे हैं। ठीक सर है, ये इसको वैल्यू आ नहीं रहा हूँ कहते हैं। सर, आपके पॉइंट में आ रहा हूँ सर। मैं डिजाइन का ये कह रहा था कि फॉर एग्जांपल हम ऐसा डिजाइन बनाएंगे कि अगर उसका फॉर एग्जांपल वेट जो है 500 ग्राम है कंपेटिटर का, हम उसी को 300 ग्राम में बना लेंगे तो काफी लाइट वेट होगा। ठीक तो है, अगर लाइट वेट इज वैल्यू। हाँ सर, तो अगर कस्टमर उसको पहनेगा तो उसको मतलब वो नहीं होगा कि बोझ एक किस्म का नहीं होगा सर पे, लाइट वेट होगा। ऑलराइट। सर तो ये एक वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं सर, उसमें क्या कह रहे हैं ठीक, वैल्यू। सही। व्हाट अदर वैल्यूज कैन यू ऐड? आई वुड हैव लाइक्ड इट मोर मुस्तफा इफ यू वुड हैव रिटन समथिंग। क्या आपने, हम यहाँ पे पढ़ रहे होते कि आपका क्या मतलब है, मुझे आपका माइंड रीड करने में आसानी होती और हम आपको बड़े स्पेसिफिक सजेशन दे देते हैं। सर उसी में वैल्यू प्रोपोजिशन में ही फिर मैंने नीचे लिख दिया कि वी आर क्रिएटिंग द मतलब जो इशू अच्छा, फिर इनको मुझे फील लगता है होती कि है आपने लेबर स्लाइड कोई और मुस्तफा आपने स्लाइड कोई और शेयर की हुई है और आप खुद कहीं और से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें जो स्लाइड नजर आ रही है उसमें ये सारा ब्लैंक है।
मुस्तफ़ा आपको समझ आई? आप जो हमसे जो शेयर कर रहे हो सारा ब्लैंक है इस टाइम पे। अच्छा सर, आपको क्या स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी? स्क्रीन शो हो रही है बच्चे आपकी, लेकिन जो आपकी स्क्रीन शो हो रही है ना उसमें, अच्छा ये आपने लिखा हुआ है द जीपीएस सिस्टम आल्सो इंस्टॉल्ड इन इट, वी आर क्रिएटिंग द इशू ऑफ, लिखा हुआ है सर। अच्छा हीट विद कस्टमर फेस, अच्छा ठीक है, सही है। तो आपकी पहली 2-3 वैल्यूज गलत है, आखिरी वाली ठीक है, और आपको बाकी जो है ना उसको इम्प्रूव करना। ठीक है सर, हो जाएगा सर। ठीक हो गया। All right. Okay, so we are done with the customer and the values of Mustafa as well. Is there anyone else who would like to present? Yes, sir. जी मुनज़्ज़र। मुस्तफ़ा आप डिस्कनेक्ट कर लो ना अपनी स्क्रीन। सर मैं I think मुनज़्ज़र you can sharing still stop share, कर can't दूं? you? सर आप ट्राई करो। सर हाँ, अब सर हो रहा है? जी जी बिल्कुल हो रहा है। सर ये कैसे होती है सर फुल स्क्रीन? ये F5 सर सही है? 5 दबाएं आप। सर फुल स्क्रीन है, मैंने कर दी है। अच्छा फिर आपने विंडो प्रेजेंट की है ना, आपने टोटल स्क्रीन प्रेजेंट नहीं की। सर यही ठीक है? नजर नहीं आ रही। Present now window. जी बताएं प्लीज मुनज़्ज़र। सर ये अब शो हो रहा है सर, क्लियर है? जी जी सर बेसिकली सर जो हमारा बिजनेस मॉडल कैनवस है सर, ये हाइड्रो टरबाइन है सर। ये इसका वर्जन 1.0 था सर, ये इसका सेकंड है सर, जो बिलाल खटक और मैंने सर अभी बनाया है। अच्छा पहले तो अपना मसला है ना, मसला क्या है? सर मसला बेसिकली ये है सर, हाइड्रो टरबाइन है सर। लोगों को सर बिजली बास ऐसी जगहों पे सर जो या आइसोलेट होते हैं या साइड में दिया, उनको लो कॉस्ट बिजली प्रोड्यूस करनी होती है, जबकि उनके पास मतलब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं तो वो उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक ऐसी सस्ती बिजली प्रोजेक्ट है सर बनाना और प्रोवाइड करना कि जो कि उनका अपना डेली टास्क या स्मॉल बिजनेस टाइप वो स्टार्ट कर सके। पानी से बिजली बनाना सर। बिल्कुल चलिए ठीक है। अब कस्टमर सेगमेंट आपकी जी कौन है? सर वैल्यू प्रोपोजिशन सर पहले नहीं बोल दूं सर, मतलब नहीं कस्टमर पहले सेगमेंट कस्टमर सर सेगमेंट उसी से। बताएं। ओके कस्टमर सर आप इसमें कौन सी वैल्यू दे रहे हैं बाद में आएगा। हाँ सर, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मतलब वो मैंने आपसे क्वेश्चन किया ना, तो हमारा एक कस्टमर जो है वो ये लोकल गवर्नमेंट बॉडी हो गए, क्योंकि यही लोग इंस्टॉल करेंगे, इन्हीं के साथ हमारी बात होगी। इनको हम कन्विंस करेंगे कि मतलब आपके विलेज में कैनाल्स है और मतलब रिवर्स वगैरह है छोटे, तो इसको यूज़ करके हमारा जो डिज़ाइन होगा टरबाइन का वो आपके लिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। ये उन विलेजेस की बात हो रही है जहाँ पे इनकी मतलब पहुंच नहीं है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को, वहाँ पे बिजलियों की इशू होगा, तो वहाँ पे ठीक है, ये लेकिन टरबाइन। इसमें ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आपके कस्टमर सेगमेंट में जो आपने बात की है वो यहाँ पे तो नहीं लिखी हुई। ये सर सर कस्टमर जूम जरा कर लो नहीं नजर, यहाँ जूम पे किया हमने हुआ है, लिखा है जूम का मसला नहीं है आइसोलेटेड। जी। आपने आइसोलेटेड विलेज पीपल लिखा हुआ है, वहां पे आपने कहा कि आप कौंसल से बात करोगे या ये सर कौंसलर से नीचे बात करोगे। नीचे सर लिखा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, पब्लिक सेक्टर लाइक स्कूल, हेल्थ अच्छा सेंटर्स होल्ड एंड ऑन नहीं स्ट्रीट। नहीं, दिस इज टू जनरल। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो प्राइम मिनिस्टर कंप्लेन सेल भी आता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आता है और सीएनडब्ल्यू भी आता है। तो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का क्या मतलब, यू नीड टू बी एक्सट्रीमली स्पेसिफिक कि भाई आपने ठीक है किसके सर, साथ, क्या आपका कस्टमर कौन है, आपको पैसे कौन देगा। तो इतना ठीक है जनरल नहीं सर। होना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट तो पूरी दुनिया की गवर्नमेंट है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग टुवर्ड्स का, तो ये इसको बड़ा स्पेसिफिक करना है इसको। ठीक है सर। ओके सर, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का वर्क सर बहुत जनरल है सर। ठीक है, अच्छा तो बोले और भी जी, बोले कि मुझे समझ आए, मैं आपको गाइड करूं। सर ये पब्लिक सेक्टर लाइक स्कूल या हेल्थ सेंटर, तो इसमें एग्जैक्टली नेम तो नहीं आ सकते ना कि मतलब फलाना हेल्थ सेंटर, ये तो एज अ जर्नल लिख सकते हैं हम कि नहीं?
अच्छा नहीं, अब मुझे ये बताएं, देखें एक तो ये कि आपके जहन में नहीं बात, क्या वाकई कोई हेल्थ सेंटर जो है वो आपसे टरबाइन खरीदेगा? जनरल सर चले हम अपना स्पेसिफिक नाम डिजाइन लिख देते हैं कि शाहिद मकसूद हेल्थ सेंटर ना, लेकिन क्या हेल्थ सेंटर वाले आपसे लेंगे लेंगे टरबाइन? सर जैसे सर हम प्रीवियसली सर फर्स्ट हमने डिफाइन किया सर कि हम उन्हीं पीपल्स को टारगेट कर रहे हैं सर जिन जो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जिनके पास है, जैसे कि स्ट्रीम कैनाल्स या रिवर्स। तो सर मोस्टली उनके करीब सर जो हेल्थ सेक्टर्स होंगे, मतलब वो जिनके पास ग्रेड नहीं पर पानी है, तो उनको सर ये अप्रोच करने की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सही है। तो फिर इससे तो फर्क नहीं पड़ता ना कि वो हेल्थ सेक्टर है या स्मॉल बिजनेस है या कुछ भी है, फिर तो आपका कस्टमर सेगमेंट वो है एनी बिजनेस विच इज क्लोज टू अ स्ट्रीम, ये आपका कस्टमर सेगमेंट है ना? यस सर तकरीबन। ठीक हो गया। तो फिर तो हेल्थ सेक्टर तो नहीं, वो उसमें तो आप उस डालते जाए ना चीजें, बस आप नाम डालते जाए, वो जो है तो वहां पे होता रहेगा, इसी तरह है यस ना? सर, एक सेक्टर आखिर में सर डालना चाहिए। हाँ ठीक नहीं, लेकिन देखो आप इसको लिखने का तरीका ऐसे करो कि जो भी बिजनेस एक खास तरह के रिवर के करीब होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये है कि आपको देखो इससे भी तो वो करना है कि हो सकता है एक बिजनेस जो है वो 2 मेगावाट बना रहा हो, उसका जो बिजनेस की कंजम्पशन है वो 2 मेगावाट हो। एक और बिजनेस है उसकी कंजम्पशन जो है हो सकता है वो 25 किलोवाट हो, 20 किलोवाट हो, ठीक है। और आपने जो घरों का लिखा हुआ है, हो सकता है कोई घर हो जिसकी कंजम्पशन जो है वो 5 किलोवाट हो। अब ये तो टोटल डिफरेंट मार्केट्स है कि आप इन सब मार्केट्स को कैटर कर रहे हो, आप एक मार्केट को कैटर कर रहे हो, आप कौन सी मार्केट में इसमें कैटर कर रहे हो? वैसे सर ये चीज़ें तो हमने की एक्टिविटीज़ में डिफाइन की है कि सर असाइन अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक यूनिट फॉर ईच टरबाइन, मतलब हम अगले के लोड के हिसाब से ही मतलब वो टरबाइन उसको प्रोवाइड करेंगे या सजेस्ट करेंगे जितने उसके यूनिट सर कंज्यूम हो रहे हैं। लेकिन देखें, आप जब किसी मार्केट को फॉलो करने लगते हैं ना, तो आपको फिर हर एक मार्केट के लिए एक अलग से एक नया होमवर्क जो वो करना पड़ता है। तो आप जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है, अब जो आपने तरबिला डैम में टरबाइन लगाना है, सही हो गया, और जो आपने स्वात में हाइड्रो पे टरबाइन लगाना है, ठीक है, मतलब वो उन दोनों में तो बड़ा फर्क है ना, इनकी टेक्नोलॉजीज में, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में, इनके कंट्रोल सिस्टम में, इनके डिजाइन में, इनकी हर एक चीज में, ठीक है। तो आपको एक टारगेट मार्केट रखनी है कि भाई हम लोग यहाँ तक जा रहे हैं, ये हमारी कैपेसिटी है, ठीक है। से हमारा जो टरबाइन है, चलो आपको एक अजम्पशन इसी कंस्ट्रेन के अंदर आप आगे काम करें। कंस्ट्रेन ये है कि आपके जो टरबाइन है वो 25 किलोवाट से ऊपर प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक हो ओके गया, सर, सही हो गया। सही अच्छा, सर। लेकिन दूसरी अच्छी बात ये है कि आप 25 किलोवाट के 4 टरबाइन लगा के आप 100 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं उनको, सही सर, सही। जी ठीक है। सर। ये अब आप एक कंस्ट्रेन ले लें, ठीक है। अब इसके तहत अब आप चले। अब ये होगा कि जब आपको कोई कहेगा ना कि हमें 1 मेगावाट प्रोड्यूस करके दो, आप उससे कहेंगे नहीं, तुम हमारे कस्टमर सेगमेंट, ठीक है। अब वो आपने जो जनरल स्टेटमेंट वहां पे दिया हुआ ना कि कोई भी हमें अपनी पावर बताइए हम उसके लिए कर लेंगे, आप उसके लिए नहीं कर सकते ना। आप ये कहें हमने एक नई तरह का टरबाइन बनाया है जो एक आम स्टीम के ऊपर चलता है, जो आम एक नहर होती है उस नहर के ऊपर चलता है, 25 किलोवाट वो मैक्सिमम निकालते ठीक है सर। हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से अब आपने कस्टमर सेगमेंट को दोबारा से थोड़ा सा रिफाइन करना होगा, ठीक है, ये बहुत जनरल है आपका। अच्छा जी, वैल्यू का बताएं जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये जो क्लास है हम नेक्स्ट वीक से 11 o'clock पे ले सकते हैं, क्योंकि सर हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है। दूसरी कौन सी क्लास स्टार्ट होगी आपकी? सर मेरी क्लास है प्रोडक्शन की। इमरान साहब पढ़ा रहे हैं? जी सर। इमरान साहब की तो इस टाइम पे कोई क्लास नहीं होती, उनकी सुबह 8:30 बजे क्लास होती है। नहीं सर, हमारे साथ है, अभी भी लगे हुए मॉड्यूल शुरू किया हुआ है। वो तो ठीक है, लेकिन टाइम टेबल के मुताबिक उनकी सुबह 8:30 बजे क्लास होती है। सर अभी उनका जो 2 सब्जेक्ट है, एक प्रोडक्शन और प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, और एक जो है वो दूसरा सब्जेक्ट है। मैंने ही टाइम टेबल उनका बनाया हुआ है, ठीक है, इसलिए मुझे पता है। 1 8:30 बजे है हफ्ते को, 1 8:30 बजे है इतवार को। सर उन्होंने ये मेकअप किया हुआ है, लेकिन वो अभी भी मतलब क्लास ले रहे हैं अभी उस अच्छा, तो उन्होंने अगर उन्होंने मेकअप किया तो आप उन्हें बताते हैं ना कि सर हमारी इस टाइम पे क्लास होती है, आप इस टाइम पे मेकअप आप डाल। असल में सर मैंने कहा कि 12 बजे तक था, इसलिए सर। अच्छा, सेइंग दैट इट्स ऑलराइट, ठीक है, आप लोग जाएं। मतलब आज की क्लास में तकरीबन हमने यही चीजें जो है ना उन्हें डिस्कस करनी थी, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इस क्लास को वीकडेज में किसी टाइम पे, ऐसे टाइम पे ले सकते हैं, डू लेट मी नो। ठीक है सर, आप टाइम बता दें, फिर हम 11 बजे सर ले सकते हैं, 11 बजे। नहीं, वीकडेज की मैं बात कर रहा हूँ,
सो जी जी वीकडेज में अगर आप लोग किसी दिन लेना चाहते हैं तो वीकडेज में अब कौन सा टाइम आपके लिए पॉसिबल हो सकता है? आई हैव नो आइडिया। आप लोग जॉब्स पे हैं ज्यादातर या नहीं है या क्या है? सर, ये अगर ज्यादा लड़के अगर सब बता रहे तो अच्छा होगा। आप आपस में डिस्कस कर लें, अगर हो सकता है ये ठीक है, ग्रुप नहीं हो में सकता तो डिस्कस इट्स ऑलराइट कर एज वेल। जी ठीक है सही है, सर। ग्रुप में सर कर लेंगे डिस्कस। ठीक है सर। ग्रुप ठीक है में सर। ये ठीक है। अब मेरी थर्सडे को क्लास होती है, तो थर्सडे को मेरी क्लास होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक वेडनेसडे, फ्राइडे को या वेडनेसडे को सुबह के टाइम, क्योंकि फ्राइडे को सेकंड टाइम में भी आपकी क्लास होती है। तो इन दोनों में से किसी एक टाइम पे अगर हो सके तो ठीक है, नहीं हुआ तो इट्स फाइन है एज वेल। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक हो गया। ठीक। ऑलराइट जी, ओके। सो हैव अ नाइस वीकेंड एंड सी यू थैंक यू। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा, अभी बच्चों तुम लोगों ने करना एक आखिरी चीज है, तुम लोगों ने करना ये है कि ये जो अभी हमारे दूसरा लेक्चर हो गया कस्टमर और वैल्यू क्यों, ठीक है, स्लाइड्स में से भी नहीं गुजरा, ठीक है, लेकिन आप वॉइस स्लाइड बहुत स्लो आ रही है सर सर आवाज आवाज अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा जी, तो अभी जो है तो आवाज नहीं आ रही सर। स्लाइड में से जो है तो मैं नहीं गुजरा हूँ, सब स्लाइड में से मैं नहीं गुजरा हूँ, ठीक है, स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है। आप नेक्स्ट टाइम जो है ना मुझसे आप सवाल पूछना कि सर इस स्लाइड में ये क्या लिखा, उसमें ये क्या लिखा है। उस सब स्लाइड में कस्टमर और वैल्यू से रिलेटेड ही बातें हैं, लेकिन कुछ भी आपको समझ ना आए तो आप मुझसे उसको पढ़ के भी लेना। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, चाहे वो स्लाइड आपके साथ ऑलरेडी शेयर है गूगल क्लास में। कोई क्वेश्चन है तो जी पूछें अभी भी। सर ये कौन सा लेक्चर है सर, आप बोल रहे हैं सर, ये देख ले। चैप्टर 4, चैप्टर 4। Let me share the slide. Hold on, let me just share the slide. क्योंकि ये मैं सुबह से शेयर करके रखी है, लेकिन मुझे लगा कि इस तरह से जो है ना ज्यादा आपको नजर आ रहा है जी अभी आपको। हाँ सर आ रही है। क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी सर, ये वाला ठीक है सर। हाँ एग्जैक्टली होगी, वो इसी चीज से रिलेटेड हुई होंगी कि आपका आइडिया क्या है, ठीक है, और आपके मतलब ये कस्टमर जो है ये आपके कौन है और आप उनको वैल्यू जो है क्या प्रोवाइड कर रहे हो। देखिए ये जो है ना ये बेसिक, ये वो सवाल की एक एक्टिविटी, ये एक्टिविटी जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये वाली सारे के सारे, ठीक है, कि आपके कस्टमर कौन है, क्या बाय करेंगे, क्यों बाय करेंगे, और अगले आप उस पे आए कि आपके मार्केट का साइज कितना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक हो गया जी। एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई कैन आंसर देम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर।